maybe I was appreciated enough by my peers and my management and everybody that you're doing so good. Right. You're good at it. You're good at your job. I used to teach other people. I used to train other people. Okay. Even when I was even when I was a fresher myself. तो मैं अपने सीनियर्स को जावा लैंग्वेज सिखा रही हूँ. तो मुझे लगता था मैं इसमें अच्छी हूँ. सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो अच्छा ही चल रहा है. At least the students of today's day and age, from day one of a job, they have their expectations are here. एक छोटी सी अगर तू मैं हो जाती है ना मैनेजर के साथ, there are people who are willing to put down their papers the next day. जिन लोगों में वो जिगरा होता है, which we say, कि हम एक चीज जो हम करते आ रहे हैं for years, उसको छोड़ के रीस्टार्ट कर सकते हैं कुछ from the scratch. I feel they are the true players. ये वेट लूज करना या हेल्दी लाइफस्टाइल से करने से मेरी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हुई है. लाइक मेरी लाइफ चेंज हो गई थी उसके बाद. 3 मेन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड. RIP, नॉट रेस्ट इन पीस. सो फर्स्ट इज उस प्लेटफॉर्म के फाउंडर्स ने भी ये चीज़ को नोटिस किया और उसको रिकॉग्नाइज किया एंड दे मेड मी द फेस ऑफ इंडिया फॉर दिस प्लेटफॉर्म. आई रिमेंबर, मतलब मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ और साथ में मेरे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं. ठीक है धैर्य, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ये तो आपको बताना पड़ेगा. आज हम आपके इतने बड़े स्टूडियो, इतने सुंदर घर में बैठे हैं, कुछ तो आपने सही किया है. Hello everyone and welcome back to the Dherya Decodes podcast. In today's episode, we have somebody who's going to be joining us from a niche or a domain that everybody is talking about lately, everybody is taking seriously, but people don't know how to actually execute things in their life when it comes to the industry of health and wellness and fitness. We are going to be joined by Gunjan Taneja. You would be knowing her popularly by the name of Gunjan Shouts on YouTube. She is the founder of I Am Wow, a health and fitness coach, and an entrepreneur and a YouTuber with over 2 million plus subscribers. I met her with her husband Himish Madan at the Isha Yoga Foundation. My experience of actually getting to know whatever it is that I could at that very point had intrigued me about her journey so much that today I have got her on my podcast and we are going to be diving deep into Gunjan's career journey and a lot more, wherein we'll understand how did she actually start right from the beginning, from her childhood years to making the decision of doing what she's doing today and whatever played out in the middle. So I'm going to dissect and decode everything. Stay tuned till the very end and welcome to the Dherya Decodes podcast, Gunjan. Thank you so much, Dhairya. I truly admire your work. I love your energy, love your enthusiasm. And I am sure we're going to have so much fun in this conversation today. And let's see what best we can bring out for the audience. Definitely. And the energy and the feeling is likewise. I think every time that I have interacted with you, even though the interactions were brief that way, I have always been inspired by what you've been able to build as an individual and also the two of you together as a couple as well. It's admirable. But to begin with, Gunjan, since as you know, this is a career specific podcast, so jo meri audience hai, and the ones who view this podcast, I think, if I'm not wrong, they come with the mindset wherein they want to know how somebody who is doing something in a particular career niche has reached where they have. Because आज तो आप हर फील्ड में करियर बना सकते हो, ये तो अब किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. If you have that willpower, you want to build a career in a field, you can do it. Now, when I talk about your industry and niche, you're obviously you are by and large a content creator, but it's a very specific niche which needs an expertise. It needs research, it needs practical implementation and results. You can't just go and make content on it. And it's a very sensitive industry. Very as well. sensitive industry because it impacts a person's life at many levels. So, what I want to understand is that if we go back in time and we try and understand how did Gunjan look at life when she was growing up in her early years? What was your childhood like? Let's start from there. Wherein I want to understand the kind of people that you would interact with, maybe relatives or the things that you would hear at home. हम अपने मम्मी पापा से चीजें सुनते हैं. Did it have any role in, getting you to where you are career wise specifically, or the decisions that you took, and how has that actually molded you into the individual that you are today? Okay, so Dhairya, this is the first time I'm going to share all of this on camera. So I'll actually take you a little, down the memory lane. So not even in my memories because this has happened all before even I was born. So Okay. my family is a part of the Indo-Pak diaspora. ठीक है. So basically, they moved from Pakistan to India and then they built everything from the scratch. So, so basically,
which is why my father and all my uncles are very hardworking, and they're very, this entire belt, who had this shift is very aggressive also. Correct. So my family is, again, then we are Punjabi as well. Yeah. So aggressive Punjabi, hardworking. So all my father and my uncles are all are into secured jobs. And my mom, she's been a homemaker. Okay. So that's my family, and that is pretty much what has shaped me into who I am today. Right. I would say Punjabi, aggressive, hardworking. Right. So these three characteristics I have taken from them. Um, while growing up, I had a very, as I said, that all of them had a secure job, 9 to 5 job wala thing. So मेरे mind में भी हमेशा से वही था कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे एक secure job चाहिए, Right. because financial security was really very important for me. Correct. So वो जो एक decided सा flow chart होता है ना, बात होता है. path होता है कि study well, get good marks, and then get a good job, शादी कर लो, तो वही flow chart था. और like abhi tak ki more than half of my life was just like that. So who I am today is like, there's a twist in the story. Oh, very interesting. But ऐसा कोई incident आपको याद हो, या anything wherein you told me most of them were in secure jobs and that 9 to 5 mindset was there. So I don't think entrepreneurship या किसी भी चीज का influence तो रहा ही होगा at that time. But were there certain things that you saw your uncles or your father or anybody in the family do which नॉट माइंडसेट वाइज बट आप पे कुछ इम्पैक्ट रहा हो इन योर चाइल्डहुड उन चीज़ों का, जब आपने अपनी करियर जर्नी स्टार्ट की, यू दोज वैल्यूज यू ट्राई टू ब्रिंग देम बैक टू योर वर्क, एंड बिकॉज समथिंग स्टे विद अस and we make sure कि if nothing else, this is something I definitely want to replicate in my life. So was there any particular incident that had a deep imprint on you, which has maybe molded you into a particular individual with certain set of values and beliefs? I think self-belief of getting things done, no matter how, no matter what comes into the picture, is something which I've definitely inherited from my family. Because I feel the reason is very same. भले ही 9 to 5 job थी, but it never felt like my father is doing a job, because he always used to bring work at home also. I have seen him working on weekends also, which you don't usually see people at work, they do it. Right. तो वो हार्ड वर्क, वो पैशन और वो पैसे कमाना, सिक्योर्ड रहना बहुत ज़रूरी है, सोच सोच के खर्चा करना, ऑल दीज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. और आज ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर रही है मेरे बिजनेस में भी. Right. Being mindful about money, because people in business usually they are not very mindful about money. Honey. Earn करना आता है but manage करना नहीं आता. So Correct. money management is something which I've learned from them. Right. And working hard is something which I've definitely learned from them. And getting things done, no matter how, what it takes, is something again which I've learned from them. Great. That's amazing. And I think all of these three values, if you combine them and I put it into just one bucket, what it resonates with or it will give an example of is, no matter what, you have to value where you come from and keep at it. Because that is when you will see the results at some point, at least in your life. Right? But उसके साथ गुंजन, अगर मैं पूछूं कि मैंने obviously आपकी प्रोफाइल एंड आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत मेरे लेवल पे जानने की कोशिश की है, तो I was pretty shocked when I got to know that you come from a corporate background, because that is something I didn't know. But what I want to understand is, how did Gunjan from, let's say, 10th or 12th grade to working in her first job, वो वाला period आपका कैसा था? And what made you, take the decision of moving towards the IT industry, towards software engineering and moving into tech, because you had a pure tech background when we go back. So if you can, share that part of your life with us. Yeah. So Dhairya, as I told you, it was a flow chart. I was just blindly following it. आपको पता था? मुझे मतलब? पता था कि मैंने 10th के बाद नॉन मेडिकल लेना है, जस्ट बिकॉज वन ऑफ माई अंकल्स, माई चाचू, ही वॉज एन इंजीनियर, अ वाइट कॉलर, नाइस जॉब, अच्छा वो ऑफिस जाते थे, अच्छे ऑफिस में बैठते थे, ऑन साइट्स जा रहे हैं, अच्छी गाड़ी उन्होंने ले ली, तो वैसी एस्पिरेशंस बन जाती हैं कि फैमिली में बेस्ट वो कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना है. Correct. तो बहुत क्लियर था कि मुझे नॉन मेड में ही जाना है, बिकॉज मुझे इंजीनियर ही बनना है. Right. मेडिकल क्लियर था कि वो मेरा माइंडसेट नहीं है मेडिकल वाला, तो बचा नॉन मेड, बिकॉज दैट्स द सेकंड बेस्ट as per the norms. तो non-med लिया, और उसके बाद engineering was the obvious next course of action. Yeah. And then because I was I can say कि हाँ, I was talented, I was good at what I was doing, so I got
I cracked good interviews. I was Right. working with top MNCs, and so but it was all like part of the flow chart कि ये करना ही है. अगर Okay. मैं इससे कुछ भी कम करती तो वो मेरे लिए I think it does not never existed for This- me. I हाँ. had to do it. Correct. I can say I never used my brain to actually analyze what I really want to do, Wanted to what do. passion is. कुछ नहीं था ऐसा. Hmm. करना है और कर रही थी. Got it. Yeah. एंड जब आप जैसे आपने बोला ठीक है फ्लो चार्ट था, यू फॉलोड इट, लाइक यू डिडंट नो इफ एनी अदर वर्ल्ड एग्जिस्टेड आल्सो बियॉन्ड दैट, वो मुझे समझ में आ रहा है. बट जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो ना उस चीज के लिए, ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ टू क्रैक इंटरव्यूज आल्सो एट द काइंड ऑफ कंपनीज यू वर्कड एट, एंड आल्सो इन जनरल द टेक इंडस्ट्री इन इटसेल्फ इज नॉट easy to be in, especially as a woman. Even today if you go as per stats, women in tech is a very niche industry. What I want to understand is when you started with your first job at at an MNC as a software engineer, what were some peculiar challenges that you faced जहाँ पे आपको भले ही काम में मजा आ रहा था, you were talented, you were built for coding, सब समझ में आ रहा है. But were there times where you felt that this is not the kind of environment or place where I should actually be in? Yeah, these are not how things should be. Did that ever come to your mind, or was everything okay? चल रहा है, बस हो रहा है. Actually, you know what? It never occurred to me. It didn't. Never. I was happy with what I was doing. Maybe I was appreciated enough by my peers and my management and everybody that you're doing so good. You're Right. good at it. You're good at your job. I used to teach other people. I used to train other people. Even Okay. when I was even when I was a fresher Fresher. myself. Hmm. तो मैं अपने सीनियर्स को जावा लैंग्वेज सिखा रही हूँ. Hmm. तो मुझे लगता था मैं इसमें अच्छी हूँ. सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो अच्छा ही चल रहा है. Hmm. So I was content, I was happy, I was looking at my growth, career ladder पे कि चलो कल को senior manager बनेंगे, कल को ये बनेंगे, वो बनेंगे. So I was happy in my own world Hmm. unless I explored the other world. Hmm. Until I explored the other world. Right. Got it. That means it was probably you were so involved in it to an extent without thinking that आपने उन सारी चीजों को शायद देखा भी नहीं होगा, which generally people probably have problems with, at least now, because I've seen one thing, that at least the students of today's day and age, from day one of a job, they have their expectations are here, Yes. right? एक छोटी सी अगर तू मैं हो जाती है ना मैनेजर के साथ, there are people who are willing to put down their papers the next day. That's where the tolerance level has gone. That's why I asked you this question. And you are telling me you were in a zone wherein you have neglected everything, and just because you were good at your work, you continued doing Exactly. things. नहीं, वो तो इस मैटर में तो इतना ड्रास्टिक चेंज है. आई हाँ. डोंट नो हाउ इट वर्क्स टुडे बिकॉज आजकल लोग, एज यू सेड इट वेरी राइट, बहुत इजी, मतलब उनके लिए हो गया है जॉब छोड़ना और हाँ, नई जॉब हाँ, करना. हाँ. आई रिमेम्बर ड्यूरिंग आवर टाइम्स, मतलब कमिटमेंट होती थी, Correct. रियल कमिटमेंट होती थी. एक फियर होता था कि जॉब, एक गलती से भी डर लगता था कि नहीं यार जॉब चली ना जाए, Correct. जबकि एक सिक्योर जॉब है, आई नो कहीं नहीं जा रही है, हाँ. बट still will give our 110%, will do everything to secure our position and everything. Exactly. अभी तो मैं इंटरव्यूज में जब पूछती हूँ अपने कैंडिडेट से कि आप हाँ. कितना कमिटमेंट कर सकते हो, आई एम हेयर टू स्टे फॉर एटलीस्ट 1 year. और मुझे लगता है मतलब हमारे लिए तो 1 year एक bare minimum चीज होती थी हाँ, कि obviously. 1 year तो obviously we'll try to Try- stay for longer. So things have, dynamics have changed changed. a lot. And now I'm glad you mentioned this also. You were in a position and at a place जहाँ पे you were working for large MNCs, obviously, and playing a role in your capacity individually to help them achieve a certain vision. Absolutely, yes. But if we connect the dots and we look at everything, there is no connection between the IT industry and health and wellness and fitness. ठीक है? It's very intriguing to see, and I love people who have the courage to pivot in their life, in their career. There is something that I'm always drawn towards people by my very nature, and I'm a career coach for a reason. जिन लोगों में वो जिगरा होता है, विच वी से, कि हम एक चीज जो हम करते आ रहे हैं फॉर इयर्स उसको छोड़ के रीस्टार्ट कर सकते हैं कुछ फ्रॉम द स्क्रैच. आई फील दे आर द ट्रू players is what I'll say. Whatever you want to say, they know how to play the game right. Now, I want to understand how did the thought of health and wellness even come to your mind? आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब कर रहे हो, सही जा रहा है, यूर सेइंग प्रमोशंस मिलने वाले हैं, थॉट ही नहीं है कहीं इधर उधर की. तो इतना बड़ा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन डूइंग इट दिस वे, वो हुआ कैसे?
Okay, that's actually a very interesting story. I was far, far away from the word health and fitness. I was totally not into it. In fact, मैं तो खुद ऐसी लड़की थी जिसकी सबसे खराब मतलब खराब लाइफस्टाइल, कोई स्लीपिंग, कोई अच्छी आदतें नहीं थी, लेट नाइट पार्टीज करना, गंद खाना, मतलब ऑल बैड हैबिट्स यू कैन Correct. काउंट ऑन योर फिंगर्स, हाँ. एवरीथिंग. बट देन उसके रेपोकर्शंस भी होते हैं. Right. मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही थी. मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी, मेरा BMI पॉइंट पे नहीं था और PCOD स्टार्ट हो गया. सो Got it. बहुत ज़्यादा वो चैलेंजेस फेस करने स्टार्ट कर दिए. तो वो चलता रहा. मतलब वो मेरे एक्चुअली ये बचपन से ही था. हेल्थ इश्यूज थे, कुछ ना कुछ वेट इश्यूज थे, बट वो ग्रेजुअली IT जॉब में ऐसा होता है ना, सिटिंग जॉब, Sitting job, डेस्क yeah. जॉब होती है, तो वो बढ़ते एग्रीवेट हो गए Right. while I was doing the job. तो फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड माय ट्रिगर पॉइंट अकर्ड कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए. तो फिर मैंने रिसर्च करा, इधर उधर पढ़ा, क्या करें, क्या होता है डाइट प्लान, कैसे वेट लूज करते हैं, फैट लॉस करते हैं. तो वाइल डूइंग दैट रिसर्च, year, Gunjan? so जब आपको ये realize this was 2015-16 की ये बात है. Okay. राइट. तो उस टाइम पे मैं साथ में जॉब कर रही थी और साथ में मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ. फिर अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस लेकर आई, लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा फिक्स करा, डाइट वगैरह स्टार्ट करी, थोड़ा मूव करना, एक्सरसाइज स्टार्ट करा. सब कुछ करते करते आई कुड, मतलब काफ़ी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, बट अल्टीमेटली आई सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ. और मैंने आई लॉस्ट गुड 20 to 25 kgs ऑफ मैसिव वेट and I transformed myself, and my transformation led to like not only me being physically, changing physically, but also मुझे realize हुआ कि ये वेट लूज करना या हेल्दी लाइफस्टाइल से करने से मेरी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हुई हैं. लाइक जैसे कि मेरी लाइफ चेंज हो गई थी उसके बाद. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब हम फिजिकल हेल्थ पे फोकस करते हैं ना, तो मुझे समझ में आया कि मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, मेरी एनर्जी के लिए, मेरे उठने सोने के लिए कितना डीप रिलेशन है मेरी हेल्थ का. लाइक हम कहते हैं ना, यू आर वॉट यू ईट. इट इज एक्चुअली ट्रू. हम गंद खाएंगे तो हम वैसे ही हमारे थॉट्स आएंगे, वैसे ही एनर्जी रहेगी. तो बहुत मूड स्विंग्स होते थे पहले PCOD की वजह से, लड़ाइयाँ झगड़े होते थे बिकॉज पेशेंस लेवल नहीं था. करेक्ट. तो ये सब चीज़ों को करने के बाद मैंने रियलाइज़ करा कि लाइफ चेंज हो रही है यार. मेरा पेशेंस लेवल बढ़ गया है, मेरे मूड स्विंग्स सही हो गए हैं, मेरे हार्मोनल चीज़ें सारी ठीक हो गई हैं, मेरे पीरियड्स टाइम पे आ रहे हैं, राइट. मेरी स्किन अच्छी हो रही है, मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं. तो आई नोटिस्ड ऑल दीज चेंजेस. एंड देन व्हेन आई ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ, एंड देन मतलब उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि नहीं, लोगों को नहीं है इस बारे में समझ. मुझे इतना टाइम लगा, सो लेट्स डू समथिंग कि मैं औरों की हेल्प कर सकूं. ओके. तो जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, कि मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि मैंने क्या किया है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्रेज, पैशन, मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी, बिकॉज दैट वाज द इजीएस्ट वे टू शेयर, स्प्रेड योर वर्ड. राइट. तो वो मैंने शॉर्ट कंटेंट से स्टार्ट किया कि चलो छोटी छोटी वीडियोस. जॉब करती थी मैं, अपना ऑफिस से वापस आके वर्कआउट करने जाती थी और वहीं पर वीडियोस, सिंपल सी वीडियोस बना के अपलोड करनी स्टार्ट की. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. into it. या. But very inspiring and very interesting to see how far you have come, right? I mean, losing 22 kgs, transforming everything. And the best part I liked is aapne bola, it was not just the physical appearance. The benefits and the things you told me you saw were changing. It's multi-dimensional. It affects so many touch points in your life jo hum sochte bhi nahi hai, right? Whether it's your nature, whether it's the quality of your relationships, sleep, your energy, the way you move, everything changes, like you said. Now I want to understand, Gunjan, when you decided personally, you were your own project, I would say in a way, right? आपने अपने ऊपर testing की पूरी. You successfully were able to transform yourself. In that period, was there, तब तो I'm sure आपने कोई certification या कुछ तब तो नहीं किया होगा, right? I was still an engineer. You were still an engineer. उस समय पे how did you go about, this entire making a plan, following a regime, inculcating physical exercise into your daily routine? What kind of changes did you make at a basic level at that time when you just started this transformation? क्योंकि तब आपको इस level की knowledge तो नहीं थी. Correct, right? It was not easy धैर्या, because इतनी scattered information है. अगर हम YouTube पे भी जाएं, इतनी scattered information है. कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है. So it's really difficult for you to identify. सबसे पहले तो इसमें से reliable क्या है, मतलब trustworthy क्या. आज मैं A डाइट फॉलो कर लूँ, कल मैं B डाइट फॉलो कर लूँ, नुकसान हो जाए. Then there are so many shortcuts. ये ड्रिंक पी लो, वो कर लो, ये कर लो. तो reliable information नहीं है. So it was not easy. I had to
हिट एंड ट्राई सो मेनी थिंग्स कि नहीं था ये इजी. अल्टीमेटली खुद पढ़ के लिख के समझ के काफ़ी चीज़ों को अनलॉक किया. एंड देन आई अंडरस्टूड कि ये इट्स मतलब ये मजाक नहीं है. मुझे एक स्पेसिफिक रेजिमेन को फॉलो करना होगा. करेक्ट. सो आई गेव माई सेल्फ 3 months टाइम कि इन Okay. 3 महीनों में मैं एक स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो करूंगी. बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, इतने उसमें कैलोरीज होनी चाहिए, प्रोटीन का फैट ऐसे होना चाहिए, न्यूट्रिएंट प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए. तो कहते हैं ना, मतलब टेक्निकली करा. अभी Yeah. तक मैं ब्लाइंडली कुछ भी कर रही थी. अब मैंने उसको एज अ प्रोजेक्ट लेकर करा कि मुझे Right. 3 महीने में प्रोजेक्ट, जब तुम्हारा गोल होता है ना, इट हैज टू बी स्मार्ट. Smart, yeah. तो उसमें टाइमलाइन होनी चाहिए, उसमें गोल होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो प्रॉपर मैंने एक डाइट प्लान फॉलो किया 3 महीने के लिए. देन मैंने एक एक्सरसाइज रेजिम फॉलो किया. आई रिमेंबर, मतलब वो 3 महीने में आई वुड गो टू जिम एवरी सिंगल डे, नो मैटर वॉट. चाहे मेरे पास टाइम है, तबीयत है, जो मर्जी है. अगर मैं नहीं भी कुछ, तो आई जस्ट गो फॉर मेयरली 15 minutes. बट मुझे वो अपना चेक बॉक्स टिक करना है कि मैं 3 महीने में से एक दिन भी छुट्टी नहीं हुई. Right. बारिश आए, तूफान आए, जो मर्जी हो, घर में मेहमान आए, मुझे कहीं जाना हो, बट मैं एक्सरसाइज मिस नहीं करूंगी, करूंगी. मतलब नहीं करूंगी. वो 3 महीने का प्रोजेक्ट मैंने इतने पैशन के साथ किया बिकॉज आई गेव माई सेल्फ द फर्स्ट एंड द लास्ट चांस Okay. कि इसके बाद आई विल नॉट कंप्लेन अबाउट इट, अबाउट माई हेल्थ, अबाउट द वे आई लुक और समथिंग. हाँ. 3 महीने में को कोई कसर नहीं छोड़नी है, मुझे Right. अपना 100% देना है. Got सो it. आई गेव लाइक ऑल इन के साथ ही गई थी मैं. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक आपने जिस हिसाब से ये बोला दैट ऑब्वियसली इतनी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि मेन प्रॉब्लम इज लेजिटिमेसी, फाइंडिंग समथिंग दैट विल एक्चुअली वर्क फॉर यू. एंड अगेन, इवन इफ समथिंग वर्क्स फॉर यू, द अदर थिंग मे नॉट वर्क फॉर यू. यू डोंट नो, और आप किस चीज़ को फॉलो करोगे, एंड स्ट्रैटेजी बनाना इज वेरी डिफिकल्ट. और आपने क्योंकि खुद उस पे रिसर्च की, राइट, आपने स्टडी किया उसको, आई थिंक दैट वाज द ओनली रीजन यू वर एबल टू मेक सच अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. वरना आई थिंक द नंबर वुड नॉट हैव बीन सो लार्ज. लूजिंग 22 kgs is not a joke. So I will say I was on both the sides. Okay. पहले मैं उस साइड पे थी जहाँ पर मैं खुद एक व्यूअर हूँ, Right. जहाँ पे मैं खुद हेल्थ की इन्फॉर्मेशन, कंटेंट, वीडियोस देखना चाह रही हूँ. मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है. तभी मुझे समझ में आया देयर इज डर्थ ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन, देयर इज अ स्कोप, देयर इज अ प्रॉब्लम. एंड आई एम अज्यूमिंग उधर से ही आपको ये थॉट आई होगी दैट इफ आई एम फाइंडिंग इट सो डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट, let's say legitimate information, knowledge and somebody telling me what is to be done, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये एक्चुअल में चाहिए. Exactly. So I identified there were 3 major problems with health and fitness industry or health and fitness content at least. Three main problems identified. RIP. RIP, not rest in peace. So first is relatable information. Right. Content बहुत है मगर relatable नहीं है. अब वो बॉडी बिल्डर्स, हैवी मैन वर्कआउट जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अगर हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो मैं नहीं रिलेट कर पा रही हूँ उससे. मुझे वेट लूज करना है, मेरे लिए सबसे पहले है कि मैं क्या खाऊं, करेक्ट, मैं अपने दिन शुरू कैसे करूं, मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ. सो रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे ये एक प्रॉब्लम एरिया दिखा. देन आईज फॉर इंटरेस्टिंग है, बट वो बोरिंग, मोनोटनस, या साइंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, न्यूट्रिशन साइंस में घुस गए. मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरी लैंग्वेज में बात करो ना. रोटी खानी है, सब्जी खानी है, कितनी खानी है, इस लैंग्वेज में बात करो ना. सो नोबडी वाज टॉकिंग इन सच अ लैंग्वेज व्हिच आई कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड आई कैन फाइंड इट इंटरेस्टिंग आल्सो. थोड़ी देखो बोरिंग लगेगा, छोड़ नहीं हो सकता यार ये. एंड थर्ड, पी फॉर प्रैक्टिकल. अब वो प्रैक्टिकल होना भी तो जरूरी है बिकॉज रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट. हमारी जॉब होती है, हमारे फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, टाइम नहीं होता है, क्रेविंग्स होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं. तो जो भी आप ज्ञान हमें दे रहे हो वो प्रैक्टिकल तो हो. तुम इन सब चीज़ों को, एलिमेंट्स को भूल नहीं सकते हो, फैक्टर इन नहीं करते हैं क्योंकि एग्जैक्टली. सो ये तीनों एलिमेंट्स मैंने देखा बिग टाइम मिसिंग है. तो जब मैंने अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तो मैंने इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखा कि वो रेलेवेंट होना चाहिए, राइट, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और वो प्रैक्टिकल होना चाहिए. I think that's the core of my content. Your content. Got it. And you started making these videos in which year, Gunjan? So I started in 2019. 17-18 I covered my own journey. I transformed myself. उसके बाद जॉब करते करते मैंने 19 में एक्चुअली, उससे पहले मैं लोगों की ऐसे ही हेल्प करती थी कि होता है ना जब आप वजन घटा लेते हो तो सब आपसे आके पूछते हैं क्या खाया, कैसे किया. तो वो करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मे बी आई शुड स्टार्ट मेकिंग वीडियोज एंड दैट वे आई विल बी एबल टू रीच टू मोर एंड मोर पीपल.
बट इधर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, या आई एम इंट्रीग टू नो, कि आपने वीडियोस बनानी है वो सोचा बिकॉज यू वांट टू रीच मोर पीपल एंड हेल्प अ लार्जर ऑडियंस, यू नो, विद वन कंटेंट पीस, बिकॉज देयर इज नो अदर वे. बट हाउ आर यू सो श्योर दैट यूट्यूब ही करना है? Because you could have gone on Instagram or some other platform also, right? Some other video based, I don't know, in India. But what made you, what gave you that conviction कि नहीं यार YouTube से start करते हैं? मैंने स्टार्ट शॉर्ट वीडियोस से ही किया था, हाँ. बिकॉज तब मैं जॉब कर रही थी तो साथ में पॉसिबल नहीं था कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊं. आप किस प्लेटफॉर्म पे डालते थे प्रैक्टिकल. तब? सो उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म होता था टिकटॉक के नाम से. हाँ. और Oh, वो you तब used to make नया नया. TikTok videos? Yes, I used to be on TikTok and like I had a very good following on TikTok. sure, Like it हाँ. was 6 million Oh something. my God. Yes. And I was one of the very few creators on TikTok who were making educational content. हाँ, And because that is TikTok पे generally you don't exactly find educational वो content. क्रिंज कंटेंट और वो सब चीज़ें ज़्यादा होती थी. Right. बट देर वर वेरी फ्यू क्रिएटर्स जो, और वही में इसको लक कह सकते हैं, टाइमिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कि मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया और उस टाइम पे टिकटॉक पे बहुत कम लोग थे जो एजुकेशनल कंटेंट या यू नो इस तरह का कंटेंट बना रहे थे. तो इनफैक्ट उस प्लेटफॉर्म के फाउंडर्स ने भी ये चीज़ को नोटिस किया Okay. और उसको रिकॉग्नाइज किया, एंड दे मेड मी द फेस ऑफ इंडिया Oh wow. फॉर दिस प्लेटफॉर्म. That's a very आई big रिमेंबर, thing. मतलब मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ और साथ में मेरे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं प्राइम लोकेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे, Amazing. इन सब जगहों पे, और साथ में मैं जॉब कर रही हूँ. Back in 2018, 19. Yes, 19. Amazing. Yeah, so this was all unexpected. Matlab, I just started, हाँ. but the timing was so right that I was on the right platform, doing the Right right thing. things with the very right intentions. So this was identified like by the right people. Correct. And then वो फिर होता ना, फिर एक बार आपको what do we say, लग जाता है समथिंग, एक चस्का लग एक जाता चस्का लग है जाता कि है वो भाई है कि ये तो अब बहुत this सही is- है. हाँ. और वो एक हाँ. recognition, एक validation भी Exactly, तो वो important होती है. exactly. और else how will you know, right? आप blindly तो चल नहीं सकते हो बस चलते. Obviously you should have a certain surety and assurance कि I am doing Exactly. something. But जब जिस प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट, जैसे आज वही बात हो गई, अगर लिंक्डइन मुझे लिंक्डइन क्रिएटर एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए लिंक्डइन टॉप वाइज बनाता है, खुद प्लेटफॉर्म से मुझे कुछ रिकग्निशन मिलती, दैट गिव्स यू इवन द मोर कॉन्फिडेंस इन योर Exactly. क्राफ्ट एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू Exactly. डू. हाँ. सो इट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज, एंड मुझे भी याद है, आई थिंक इनफैक्ट इवन एट द टाइम जब आप बोल रहे हो हेल्थ वेलनेस का, तो मैंने कभी भी टिकटॉक पे एज सच मुझे याद ही नहीं है. तो आई एम वेरी श्योर दैट यू वुड हैव बीन एट द टॉप ओनली एट दैट टाइम, क्योंकि लोग कर ही नहीं रहे थे. नहीं करे थे टिकटॉक पे आके हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में बोलना, और वो भी रियल कंटेंट. सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीछे म्यूजिक लगा के मैंने कुछ करके दिखा हाँ. दिया. मैं जाकर बता रही हूँ और हिंदी लैंग्वेज में बता रही हूँ, आपकी लैंग्वेज में, सिंपल रिलेटेबल. तो लोग मेरे से रिलेट बहुत आपने ज्यादा TikTok करते पे थे. हिंदी में बनाया यस. कंटेंट. और लोग मेरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे. मैं लड़कियों को टियर 2 टियर 3 तक पहुंच सकूं, तो देसी हिंदी लैंग्वेज में मैंने शुरू किया. मैंने ये नहीं बोला कि आप जिम में जाओ और इस तरह के डेडलिफ्ट मारो. मैंने बोला कि आप अपने घर में अपने बेडरूम में खड़े हो, इस तरह से 5 स्क्वाट्स कर लो, आपकी जो लोअर बॉडी फैट की प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी. तो लोगों को ये बात सेंसिबल लगी. उनको उन्होंने उठ के करना शुरू कर दिया. करेक्ट. मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट करने से पहले आधा घंटा पहले गर्म पानी में नींबू डाल के पी लो, आपका फैट बर्निंग में हेल्प होगी. उन्होंने अगले दिन से करना शुरू कर दिया. वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज अ वेरी गुड इनसाइट. अब उससे मतलब एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आपने टिकटॉक पे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हिंदी में बनानी शुरू की, जॉब के साथ साथ किया ये, एंड आपको रिकग्निशन भी मिला, राइट, एट अ वेरी अर्ली स्टेज. अर्ली, द स्टेज वाज अर्ली, बट माय ग्रोथ वाज मतलब ऐसा था कि कम टाइम में मैंने काफी very ग्रो कर phenomenal. लिया था. Exactly, very phenomenal. Now, when all of that started happening, Gunjan, did the thought start coming in at that time only कि यार इसमें career बनाया जा सकता है? When did you know कि I can maybe do something full time in this? और were you like नहीं बस करते रहते हैं उसको साइड पे? मैंने ऑनेस्टली करियर पर्सपेक्टिव से उसको देखा नहीं था, क्योंकि अगेन मेरा माइंडसेट काफी ब्लॉक्ड था बिकॉज ऑफ अगेन गोइंग बैक टू Even after these hoardings and everything yes going up. मैं I was enjoying all of that. I was loving the validation and all the love that I was getting from my Right. followers, but still mind में वो एक होता है ना, जब आपका माइंड ब्लॉक्ड होता है, तो वो ब्लॉक्ड था बुरी तरह से कि जॉब तो जॉब है, जो 1 तारीख को सैलरी आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन आई लेट दैट गो एंड मेकिंग इट अ करियर. मैं बहुत ज़्यादा जॉब माइंडसेट था मेरा बिजनेस माइंडसेट, रिस्क टेकिंग माइंडसेट नहीं था वो.
तो तब तक भी इनफैक्ट इतना कुछ हो रहा है, मेरे पास ब्रांड्स रीच आउट करना स्टार्ट I'm sure, कर हाँ, गए थे, कर ही बट दिए होंगे। इवन देन आई वाज नॉट टेकिंग इट बिकॉज आई वाज डूइंग माई जॉब। तो हम्म, तब तक भी नहीं था, बट देन नाउ मतलब आई विल रिवील व्हाट यू आर ट्राइंग टू यू नो। yes, तो फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, क्योंकि Okay. जब मैं टिकटॉक कर रही थी तो TikTok आई के साथ रियलाइज, साथ? हाँ टिकटॉक 2-3 महीने करा, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया यूट्यूब भी, ठीक है। बिकॉज आई वॉज लविंग इट। मतलब मुझे धीरे धीरे ये दिख रहा था कि मैं इंजॉय तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, मैं अपने it. जॉब से ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को। वो था ना, नया प्यार मिल गया। हाँ, तो मैं New enjoy found love. एग्जैक्टली तो मैंने लॉन्गर वीडियोस बनानी शुरू करी, बिकॉज देयर वाज सो मच दैट आई वांटेड टू शेयर। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप शॉर्ट फॉर्मेट में नहीं दे नहीं पाते बता हो, सकते हो। तो पूरा अपनी जर्नी को शेयर करना। मुझे याद है मेरी सबसे पहली यूट्यूब की वीडियो थी माई ओन जर्नी, Okay. कि मैंने उन 3 महीने में क्या किया, मैंने सिर्फ ये बताया। एंड हाँ। देयर आर दैट वेरी वीडियो, द फर्स्ट वीडियो, within a week it crossed 10,000 subscribers, within a month it crossed 1 lakh subscribers, My my God. channel got monetized, and In a month. in a month, and it was a new birth for me. Wow. This is phenomenal. And that's when I thought कि no, इसमें तो अब फिर आपको तो लगा ही होगा, अब तो Yes. पोटेंशियल दिखा ही होगा, आई एम Yes. श्योर। और मैंने कोई टैक्टिक्स, कोई स्ट्रैटेजीज हाँ, नहीं, इट नहीं की वाज थी। फुल्ली ऑनेस्ट वीडियो, रिलेटेबल, वही जो मैंने एंड चीजें अगेन आई दी। फील क्योंकि वो कमी थी ना, और आप उस गैप को फिल कर रहे थे एट द राइट टाइम, क्योंकि लाइक यू सेड रिलेटेबल नहीं था, इंटरेस्टिंग कुछ नहीं था, प्रैक्टिकल कुछ नहीं था, आपने वो तीनों फॉर्मुलेट करके इनकैप्सुलेट कर दी इन द वीडियो। Exactly. And I think that's where people would have seen that, I would say, value in your videos, wherein they felt that I can do this and replicate it in my life, and hence I want to follow her. Right? I look at it that way because मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक मैंने आपको शायद फोन पे भी एक बार बीच में बताया था जब हम ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बट देर बीन सो मेनी इंस्टेंसेस, मैं घर पे आई हूँ, आई एम नॉट इवन किडिंग, क्योंकि मेरी मम्मी भी अभी ट्राई कर रही है वेट लूज करने का, एंड आपकी वीडियो चल रही होती है टीवी पे, और वो कुछ ना कुछ देख रही होती है, आई वुड से चलो 8 out of 10 times if she's seeing a डाइट रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड, रिजीम रिलेटेड वीडियो आपकी रेकमेंड करता है यूट्यूब, और वो आपकी वीडियोस देखती है रेगुलरली, ठीक है। पहले तो उनको आपका नाम नहीं पता था, तो वो देखती थी, बस उनको पता था कि ये है, एंड शी मेक्स वेरी गुड वीडियोस। फिर एक दिन मैंने नोटिस किया, मतलब एकदम कीनली, कि हर बार देखती रहती है इनकी वीडियोस। मैं बोला, डू यू नो हु शी इज, मैंने मम्मी को बोला, तो बोलती है नहीं। तो मैंने बोला, उसको उसके बारे में आप उनकी उनकी थोड़ी रिसर्च करो। हर नेम इज गुंजन, गुंजन शाउट चैनल का नाम, क्योंकि उनको यूट्यूब पे वो चेक करना भी स्मार्ट टीवी पे नहीं आता था। Then I told her I'd met her in person also, and you should actually see in general also her journey and some videos that she puts on Instagram. बहुत ज्यादा वैल्यू, एंड शी डिड इट हर सेल्फ, बिकॉज आपकी इनिशियल वीडियोस तो उन्होंने नहीं देखी थी, वो अभी वाला कंटेंट देख रही थी। आई टोल्ड हर शी डिड इट फॉर हर सेल्फ फर्स्ट, एंड नाउ शी इज हेल्पिंग अदर पीपल डू इट। तो अब वो सृष्टि वाली जर्नी सब तो देखती हैं, तो उससे मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि वो भी, क्योंकि इतने लोग तो बहुत हैं जो कर रहे हैं यार, हर इंडस्ट्री में कंपटीशन क्लटर है, फाइन। The point is, who is standing out? And why are you standing out? The reason is very clear. People have to find you relatable, have to find some true value out of it. Because, like I said, podcast भी कोई भी बैठ के आपके ले सकता है. It's not that. तो I want to understand इसी बात पे गुंजन, that जब आपने वीडियोस बनानी शुरू कर दी लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज अ डिफरेंट गेम, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। जब आप 1 मिनट की, मैं ये नहीं बोल रही मेहनत नहीं है उसमें, बट जब आप बैठ के 8 से 10 मिनट की ट्रू वैल्यू किसी को दे रहे हो, एंड यू कैन कीप समबडी एंगेज टू वॉच इट, आई एम श्योर यू वुड हैव फेस सम चैलेंजेस, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आई होगी। हाउ डिड यू डू द ट्रांजिशन? इनिशियली सब कुछ खुद करना पड़ता है, एंड दैट्स द Correct. फैक्ट ऑफ मैटर। वो हार्डवर्क से आप नहीं बच सकते, हाँ, नो मैटर व्हाट। आप अपने खुद कंटेंट राइटर हो, इनफैक्ट राइट फ्रॉम जब आपने सोचना है कि बनाएं क्या, राइट, एक टाइम आता है जब आपके आइडियाज, आपके टॉपिक्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और वो मेरे हो गए थे। शॉर्ट कंटेंट मैंने सब दे दिया था, उसके बाद अब आपके आइडियाज एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर आपने सोच के ये सोचना है कि क्या मेरी ऑडियंस चाहती है, उनकी रियल डायर नीड क्या है, क्या चाहिए उनको। राइट फ्रॉम देयर पूरी स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसके बाद कैमरा हैंडल करना, उसको डिलीवर करना, फिर एडिटिंग करना, और मुझे इंटरेस्टिंग भी बनाना था। तो मुझे याद है मैं अलग अलग रोल्स करती थी। Okay. मैं 3-4 उसमें रोल करूंगी, मैं खुद ही Characters कैरेक्टर्स different. बनाती थी। अच्छा। तो खुद ही मैं एक वो लड़की बन गई जो मेरी ऑडियंस जिससे रिलेट कर पाए, हाँ, कि आई नीड द गाइडेंस, एंड देन आई विल बिकम द कोच, शी Who's इज giving टेलिंग her? हर
सो उसको इंटरेस्टिंग बनाना, इस तरह से चीज़ें करना और फिर उसको अपलोड करना, तो ये पूरी एक कंटेंट क्रिएशन की एक लाइफ साइकिल होती है जो कि आपके डे 1 पे आपको खुद ही करनी पड़ती है, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप वो खुद ही करते हो, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि तभी आप इन निटिग्रिटीज़ को समझते हो, तभी आपको पता चलता है कि क्या वर्क कर रहा है मेरे लिए, क्या वर्क नहीं कर रहा। तो yes, that demands a lot of hard work and you just cannot escape from it. There is no shortcut. टिपिकली जब आपने स्टार्ट किया, आपको एक यूट्यूब वीडियो बनाने में एंड टू एंड कितना टाइम लग जाता था? 10 से 15 दिन लग जाते थे मुझे। माय गॉड, 10 to 15 days. Yes. That's a lot of time. 10 to 15 days because very initially तो मैं साथ में जॉब कर रही थी। Correct. तो मैं अपना या तो वीकेंड्स पे इस पे काम कर पा रही हूँ, या फिर वापस आके अगर 1-2 घंटे में दे पा रही हूँ, तो मेरे लिए वो जर्नी थोड़ा इनिशियली और ज़्यादा मेरे को टाइम लग रहा था। अदरवाइज आई थिंक इट स्टिल टेक अ वीक्स टाइम एक वीडियो को करने में। तो आपने बिगिनिंग में जब यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट की होंगी, आई एम अज्यूमिंग योर फ्रीक्वेंसी वुड हैव बीन वन वीडियो इन 10-15 days, ऐसा कुछ था, या यू वर स्टिल एबल टू पुट वीडियोस रेगुलरली? तो मैंने डे 1 से अपने लिए वो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है, तो मैंने एक कैलेंडर बनाया था कि मैं एक हफ्ते में एक वीडियो डालना चाहती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया ही था अभी, और वेरी सून आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब सो दैट आई कुड गिव इट मोर टाइम। गॉट इट। नहीं, बट सुनने में ये ऐसा लगता है आपने रिजाइन कर लिया। आई एम श्योर टू कम टू दैट पॉइंट वेयर यू वर श्योर इनफ दैट आई वांट टू रिजाइन। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट हाउ डिड यू make that decision? What shift in mindset did you have? Because you told me you were blocked continuously. आपने यही बोला अभी तक कि मेरा एक job mindset ही था, that was my upbringing, security, 9 to 5 job, that's what you saw around you in your family. How did you break that mindset, and when did that point come that I am quitting now and I will give this my 100% full time dedication, time and energy? आई रिमेंबर इस टाइम पे जब ये सब चल रहा था, तो अभी मैं कंटेंट बना रही हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ, मुझे लोगों से बड़े अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ इसको, और साथ में जॉब भी चल रही है। तो इस बीच मैं और मेरे हस्बैंड हिमीश, हम लोग मसूरी गए। Okay. तो लॉन्ग ड्राइव थी हमारी, और हम लोग निकले हैं दिल्ली से, और हम लोग मसूरी जा रहे हैं बाय रोड। और मेरे दिमाग में एक खिचड़ी पक रही थी कि मेरे को कुछ तो करना है, मेरे को इसमें करने में मज़ा आ रहा है, सब चीज़ें। धैर्या, मैं दिल्ली से लेकर मसूरी तक के पूरे रास्ते में आई डिड नॉट लुक आउटसाइड इवन वंस, बिकॉज रोड ट्रिप पे आप बाहर देखते हो, एंजॉय करते हो, मजा सीनरी। हम नॉन स्टॉप जा रहे हैं, और मैं थ्रू आउट हिमीश से सिर्फ यही डिस्कस कर रही हूँ कि मैं इसमें कुछ करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन दिस बिकॉज आई एम रियली लाइकिंग इट, आई एम रियली इंजॉइंग दिस, बट इसमें मैं अर्न कैसे करूँगी? तो वो सारी जो दिमाग के अंदर थॉट्स थे, भसड़े थी ना, आई केप्ट डिस्कसिंग विद हिम, एंड बाय द टाइम वी रीच्ड देयर आई हैड कंप्लीटली मेड अप माई माइंड that I want to resign. One drive from Delhi to Mussoorie is all it took. It changed everything for me. वहाँ पे वो 2 दिन कैसे निकाले हैं मुझे पता है कि चलो ठीक है, हम घूमने आए हैं, घूम रहे हैं, बट वापस आते वक्त वहीं से हम निकले हैं, और तब तक मेरा डिसीजन बन चुका था। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा, कैसे मैं हाउ विल आई मेक माई एंड्स मीट, बिकॉज मैं एक हम्बल फैमिली से आती हूँ, हमारे लिए सैलरी बहुत ज़रूरी होती है, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता या बहुत बैकअप है, ऐसा कुछ है। मेरे पास अपनी खुद की सेविंग्स थी जिससे मैं अपना अगले 3-4 महीने सर्वाइव कर सकती थी, but that not more than that, and I had no idea that how will on this earth I will make money once I resign, but करना है ये सोच लिया, इसके बाद कैसे होगा उसका कोई आइडिया नहीं था। वापस आते वक्त मसूरी से मैंने अपने पापा को कॉल किया, क्योंकि बचपन से आदत है पापा से हर चीज़ डिस्कस करने की, उनको बताने की, और बहुत डर था कि पापा बोलेंगे हमने पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, तुम नौकरी छोड़ दोगे। तो पापा को कॉल किया, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे मैं जॉब छोड़ने का मैंने डिसाइड कर लिया है, और मैं ये करूँगी। थैंकफुली उस टाइम पे पापा ने भी फुल सपोर्ट किया, उन्होंने बस 1-2 चीज़ें पूछी कि अच्छा क्या करोगे ये वो, बट देन ही सपोर्टेड मी कि ठीक है, इट्स योर डिसीजन, जैसे करना है तो करो। एंड माय फादर इन लॉ, सो मेरी ये दोनों फैमिलीज जो है ना, ये ईस्ट और वेस्ट है, मतलब 2 अलग अलग दुनिया है ये। मैंने अपने फादर इन लॉ को भी कॉल किया कि अच्छा पापा मैं जॉब क्विट कर, हाँ बेटे करो करो, वेरी नाइस। क्योंकि वो तो बिल्कुल हमेशा से उन्होंने बहुत रिस्क लिए हैं लाइफ में, बिजनेस अलग अलग बिजनेस किए हैं, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड कि हाँ ठीक है, छोड़ो मजा आएगा। ऐसे ही ठीक है, दोनों पापा सेट है, अब छोड़ देते हैं। फिर वापस आते ही फर्स्ट थिंग हिमीश ने इनफैक्ट मुझे बोला कि स्लीप ओवर योर डिसीजन, कल रिजाइन कर देना। मैंने कहा नहीं, मेरा कल तक डिसीजन चेंज हो गया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने उसी टाइम लैपटॉप खोला, आई सेंट माई रेजिग्नेशन ईमेल, एंड देन हियर आई एम टुडे।
ना मुझे से फिल्म का सीन कुछ हाँ लग रहा है ऐसे। वो बहुत फिल्मी था, है ना, मतलब अभी बहुत तक फिल्मी है, मैं बट वेरी नाइस। आई थिंक व्हाई आई ऑल्सो फील कि जब आप ये मतलब when you're narrating the story and you have gone through it, so you have lived those moments, I cannot feel that, but I have also done something similar. I've quit my job at a point, right? So when you quit your job, it is a very big decision, like you said. आप एक जब humble background से आते हो, especially जब आपके ऊपर बेसिक थोड़ी बहुत भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ लग्जरी टू बी एबल टू लीव योर जॉब। इट्स नॉट समथिंग यू कैन जस्ट डू ओवरनाइट। वो करेज ना आपके दिल में रखना और होना कि यार जो भी होगा ना देख लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे, और वट एवर, लाइक यू सेड आपके पास 4 महीने का रनवे था, बट इफ एट ऑल यू हैड टेकन दैट पॉसिबिलिटी ऑफ 0.01%, अगर नहीं चला, बिकॉज नहीं भी चल सकता था, राइट? यू हैव टू कंसिडर दैट केस. In my case also, it could have gone down, you never know. But even knowing that it could have gone down when you take that एब्सोल्युटली इट decision, वाज अ फुल रिस्क, it क्योंकि was, मेरे हाँ, पास कोई प्लान बी था ही नहीं, प्लान right. बी छोड़ो ए नहीं था। मैं Hmm. वीडियोस बना रही हूँ बट वीडियोस से मैं क्या ही कर लूंगी, कुछ आइडिया नहीं था। सो Right. इट वाज अ कंप्लीट मतलब गैम्बल था कि छोड़ दिया, अब देखेंगे क्या होता है। Got it. तो अब आप बताओ, जब आपने छोड़ दी, उसके बाद फिर आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज की या क्या किया, या डिड यू गो विद द फ्लो एंड देन फिर चीजें अपने आप ठीक है fell धैर्य, into दैट्स place? ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू नहीं नेक्स्ट नहीं नहीं टाइम। नहीं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। आज हम आपके इतने बड़े स्टूडियो, इतने सुंदर घर में बैठे हैं, कुछ तो आपने सही किया है। वी नीड टू ओके, नो। आई थिंक मैंने सिर्फ उसके बाद अपना 100% दिया, ऑनेस्टी के साथ काम किया, एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड के Yeah. मुझे वो अपना जो सेविंग्स थी या जो मैंने एक बफर अपना क्रिएट करके रखा था, वो मुझे यूज़ नहीं करना पड़ा। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ आई स्टार्टेड, लाइक आफ्टर आई क्विट माई जॉब, पहले महीने से ही मैंने इतना अर्न करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे दिख गया कि ये तो आगे अच्छा जाएगा अच्छा, सब कुछ। हाँ, सो इट वॉज गुड, लाइक जो भी आ रहा था वो अच्छा था। राइट। मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी लाइफ में, एंड ऑल थैंक्स टू द सपोर्ट विच माई फैमिली हैड गिवन मी एट दैट टाइम, माई हस्बैंड, माई या फैमिली एंड एवरीथिंग, कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम कर रही थी, दिन रात काम कर रही थी, सिर्फ काम के बारे में सोच रही थी, और वो इतना ज़्यादा मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई थी कि शायद मैंने और किसी चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। सोचा नहीं। एंड आई नेवर रियलाइज्ड व्हेन थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग। सो जब वीडियोस आप इतने अग्रेसिवली, इतने अच्छे से बना रहे हो, फुल शिद्दत के साथ, तो वहाँ से भी आपको यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम देयर। राइट। एंड देन very soon there was one email which changed my life, like Okay. which was like again a game changer. हाँ, मैं अभी कंटेंट कर ही रही थी और थोड़े टाइम बाद ही मुझे एक ईमेल आती है एक लड़की की, फ्रॉम Okay. सम, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द सिटी, बट इंडिया में से किसी की ईमेल आती है हाँ, कि गुंजन, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कंटेंट, मैंने आपकी वीडियोस को फॉलो करके अपनी हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है, ठीक बट है। नाउ आई वॉन्ट अ पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। I हम्म, want a, do you provide any personalized guidance, Guidance. personalized diet plan or something of that sort? Because I Mhm. want to do a one-to-one kind of a Right. thing with you. राइट। And that clicked me हम्म, कि ओके, सो लोगों को वन टू वन भी तो चाहिए, अभी तो मैं बहुत जनरल नॉलेज दे रही हूँ, तो हाँ, एक वन टू वन सपोर्ट गाइडेंस चाहिए। तो हाँ, आई थिंक दिस इज समथिंग वेर इन आई कैन हेल्प पीपल ऑल्सो, करेक्ट। एंड दिस ऑल्सो लुक्स लाइक अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। एग्जैक्टली। सो एक या, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस हाँ, होता है कि एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। जिसको आप सॉल्यूशन से फिल कर देते हो, दैट मेक्स इट अ बिल्कुल। बिजनेस। या, तो वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम दिखी जिसका मुझे लगा कि मैं एक कैटलिस्ट बन सकती हूँ, उनको सोल्यूशन दे सकती हूँ। बट अब यहाँ पर कैच ये था कि आई माई सेल्फ इज नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, आई एम नॉट अ डाइटिशियन और समथिंग कि मैं आपको डाइट प्लान बना के दूँ, और ऐसा राइट। कुछ गलत काम मुझे करना भी नहीं था जस्ट बिकॉज बिजनेस के लिए ऐसे। तो देन आई हायर्ड अ डाइटिशियन। ओके। सो वो मेरी पहली डाइटिशियन, मुंबई से मैंने एक लड़की को हायर किया, और सो वो मेरी मतलब वी, इट वाज लाइक अ टीम ऑफ टू टीम पीपल, टू, मी एंड देन हाँ, माय डाइटिशियन, एंड देन देयर वाज अ क्लाइंट ओके। who wanted help. There was a qualified nutritionist, I was the राइट। catalyst, and then so this That's how was you the, started taking clients for your yes, personal one-on-one yes, so that was training. the first client, and Okay. gradually it started growing कि अब आज 30 लोगों की टीम है, full office है, and then now we have clients from all over the globe. Right. Gradually we built our app, Which is there very are inspiring. 1 lakh downloads and Amazing. all of this. Right? I think it's become a community in itself. It Yeah, is I am Wow exactly, is a community. it is a community, It is a community. very close to my heart. Yes, I'm sure. I'm sure. It's your baby. You've built it from scratch, yaar. And it's so inspiring to know कि like you said, एक email आया
किसी ने आपको बताया कि अगेन ये मेरी प्रॉब्लम है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? आपने उसको सिर्फ एज़ अ वन यूज़ केस नहीं देखा, आपने ये सोचा कि इफ अगेन शी नीड्स इट, देयर मे बी मल्टीपल पीपल हू नीड दैट कस्टमाइज्ड support, and I can do that. And again, I really like the fact that you realized not where your shortcomings are, but what you're not maybe qualified to do, found the right person to do it, partnered with them and provided that service. एग्जैक्टली एंड यू नो व्हाट धैर्या, इफ आई हैड बीन अ न्यूट्रिशनिस्ट माई सेल्फ तो शायद ये इस बिजनेस को मैं यहाँ तक पहुंचा ही ना पाती, क्योंकि मैं खुद ही इन्वॉल्व हो जाती और मैं Correct. कितने ही क्लाइंट्स ले लेती, True. 10 के बाद वो कहानी खत्म हो जाती, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट qualified enough to do that at that point in time. अब तो I have done हाँ, you've all done the your courses and हाँ. everything. उस टाइम पे मैं नहीं थी, तो शायद वो एक लिमिटेशन को मैंने स्ट्रेंथ बना लिया और मैं आज यहाँ पे हूँ. Correct. तो कई बार लाइक दिस माइट बी यूजफुल फॉर द ऑडियंस एज वेल, कि कई बार आप चाहते हो कि सारी चीजें हम खुद ही करेंगे तो ही होगा, बट दैट्स नॉट नेसेसरी बी द केस ऑलवेज. यू नो लुक फॉर कि क्या आप कर सकते हो, वर्क अराउंड्स क्या है. Correct. सो लेट डोंट जस्ट स्टॉप योरसेल्फ जस्ट बिकॉज कि हाँ यार ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. ट्रू. एंड आई थिंक जो आप बात बोल रहे हो उसी को एक्सटेंड करके, आई थिंक डेलीगेशन किस पॉइंट पे करनी है ये भी आना बहुत जरूरी बहुत है. जरूरी है. और मैं बहुत तो ज़्यादा. इसको इतना रिसेंटली सीख रही हूँ दैट आई रियलाइज्ड हर चीज वैसे भी एक इंसान कर नहीं सकता. और जिस चीज में आप क्वालिफाइड नहीं हो, करना नहीं चाहते हो, या यू फील इट्स नॉट नेसेसरी टू बी डन, हैज टू बी एंड शुड बी गिवन अवे टू समबडी Exactly. हु इज द राइट पर्सन टू फिल इन दोस शूज. हम लोग डेलीगेशन से ना बहुत डरते डरते हैं, हैं. क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला या अगर हम किसी को हायर करेंगे तो वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं मिलेगा जो हम कर सकते हैं. करेक्ट. जो स्वेट एंड ब्लड हम डालेंगे वो कोई और क्यों डालेगा, बट फिर हम कभी ग्रो भी नहीं कर पाएंगे. True. इफ यू वांट टू स्केल योर बिजनेस यू हैव टू have to डेलीगेट. yeah, you have to delegate and have the right team. आपने अभी बताया गुंजन, obviously now you're a 30-member team. There are members in different countries also in of the community, and obviously you are doing one-to-one sessions as well. I think, I don't know अगर आप offline करते हो या नहीं, mostly online ही मोस्टली होती है. ऑनलाइन होता है Online बिकॉज ही होती है. हमारे 40 to 50% क्लाइंट्स जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज से हैं, Countries से. इन पर्सन तो वो possible पॉसिबल नहीं ही हो नहीं पाता. है. Okay. So on that note, what I want to understand, अभी आपने बोला उस at that point you were not qualified. Now, if somebody wants to do something similar to you, right? They want to get into the health, fitness industry, wellness ecosystem. Are there some specific certifications जो आपको करने ही चाहिए या करने पड़ते हैं, from credibility standpoint, industry standpoint, या you know, in the way a client looks at you? Because I don't know how it is. And why did you decide to do them? And what are those certifications that people should look at doing that can help them accelerate their journey in this career तो domain? अगर किसी को न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, हाँ. डाइटिशियन बनना है, तो उसके लिए तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, वो सब कर सकते हैं. बट ये यहाँ पे खत्म नहीं होता. देर आर सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन स्टिल डू इफ यू डोंट वांट टू बी अ न्यूट्रिशनिस्ट. Okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फिटनेस में ही सिर्फ जाना चाहते हो, तो Right. उसके लिए अलग कोर्सेज हैं जिसमें आप सिर्फ फिटनेस या एक्सरसाइज एक्सपर्ट बनते हो. Okay. एंड देन देर आर अब तो बहुत सारे जैसे आयुर्वेदा के भी कोर्सेज हैं. अगर Right. आपका इंटरेस्ट आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस में ज़्यादा है तो वो कर सकते हो. योगा के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं तो आप वो कर सकते हो. देन अगर मेंटल वेलबींग पे जाना है तो फिर वेलनेस कोर्स, मेंटल मेडिटेशन कोर्सेज कर Right. सकते हो. व्हाट आई हैव डन, मैंने उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह के तो भी कोर्सेज कर लिए हैं, हाँ. बट मेजर जो मेरा है वो है हेल्थ कोचिंग में. Okay. सो हेल्थ कोचिंग मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बेसिकली माई एक्सपर्टीज इज इन हेल्पिंग पीपल शेप देयर माइंड सेट टू बिकम फिट, बिकॉज आई बिलीव दैट इज द फर्स्ट First थिंग thing. विच इज रिक्वायर्ड. डाइट प्लान आप ले लोगे, एक्सरसाइज आप कर लोगे, आप जिम में जाके एक पर्सनल ट्रेनर हायर करके भी कर लोगे, Correct. बट अगर आपका माइंडसेट ही नहीं होगा तो फिर आप स्टार्ट ही कैसे करोगे? क्योंकि Right. आपके पास 10 बहाने होंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा फैमिली ये है वो है, 10 चीजें होंगी. सो आई वर्क ऑन दैट एरिया, मतलब दैट्स माई एक्सपर्टीज. Got it. I help you change your mindset and help you develop those healthy habits, Right. you know, shifting the mindset from being a unhealthy, मतलब इस तरह से. तो वो that's my It's an expertise. So entire mindset shift. exactly, so हाँ. that's why I call myself, और मेरा जो credentials हैं वो health and wellness coach है. Got it. और तो ये भी एक डोमेन होता है, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में ज़्यादा है, हाँ. यू नो, इमोशनल इंटेलिजेंस Right. और ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद हो, तो इसमें भी आप हेल्थ इंडस्ट्री में आ सकते हो, बट यू विल स्टिल बी डूइंग
और soft आपने skills कौन and सी all this. सर्टिफिकेशन की फिर इसमें? मैंने अमेरिकन काउंसिल से किया है, Got ACE it. हेल्थ कोचिंग. Got it. And this was, how long was this course, Gunjan, that you did? सो दिस वाज अ सेल्फ पेस्ड लर्निंग कोर्स, ठीक है. जिसको मुझे टाइम लगा बिकॉज मैं साथ साथ अपना फुल टाइम कंटेंट भी बना कर रही रहे हूँ, थे, हाँ. बिजनेस भी कर रही हूँ. Right. तो अदरवाइज इसको कुछ लोग जो फुल टाइम करते हैं वो 3-4 महीने में भी कर लेते हैं. मुझे अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स लगे. लगे. सेल्फ पेस्ड लर्निंग थी, तो साथ में कोर्स करना एंड Hmm. ऑनलाइन सेशंस एंड उन सब के थ्रू. Nice, very interesting. So it was the ACE, you said, health coaching ACE certification. health coach, Very yes. nice. So I think because इससे at least people will get an idea if they want to do something like this. I'm not saying that आपको करना ही जरूरी है, but I'm sure it just helps when you're Right. acquiring clients or talking to people. एक वो Exactly. trust चाहिए होता है ना, हाँ, क्योंकि लोगों just को. look at where your interest is. अगर Right. आपका इंटरेस्ट है डाइट प्लानिंग में, तो उसके लिए तो बहुत सारे इंडिया हाँ. में कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, Right. ample number of things are there. So Correct. just see where your interest lies, but there are multiple things that you can go into. It's just not कि हाँ मुझे डाइटिशियन ही बनना बनना है. है. 10 चीजें हैं जो आप कर सकते हो. Correct. Got it. With that, गुंजन, जब हम अब YouTube की बात करते हैं, एंड ऑब्वियसली आपने ट्रांजिशन कर लिया था एंड कम्युनिटी भी बनने लगी थी, आपने सेशंस भी करने शुरू कर दिए थे. द चैनल एनीवेज हैड अ वेरी गुड ग्रोथ इन द बिगिनिंग इटसेल्फ एंड देन ऑब्वियसली इट केप्ट पिकिंग अप. Right. I want to understand that when did you realize that there is a good level of money is involved? You had understood, that's why you quit your job and had that courage कि चलो कर लेते हैं हम. कब आपको रियलाइज हुआ कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे मोनेटाइजेशन एक ऐसे एक्सटेंट पे हो सकती है दैट आई कैन नॉट जस्ट ऑब्वियसली सस्टेन माई सेल्फ but also build a team, create a business out of it, and further expand and scale an entire company, so to say. Right. So how did the I am wow idea also come in? How did the scaling come in? And कब आपको पता चला कि YouTube can enable all of this for you? So it's exactly what we just discussed right now, कि अगर हम नहीं इसको it goes hand in hand. अगर मैं टीम बिल्ड कर रही हूँ तो मैं वहां पर स्केल कर पा रही हूँ, मैं अपनी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी को बढ़ा पा रही हूँ, और इधर से मैं टीम को सरवाइव करवा पा रही हूँ. करेक्ट. अगर मैं टीम नहीं बिल्ड करूंगी तो ये भी ग्रो नहीं करेगा. सो मोनेटाइजेशन, इन ऑर्डर टू ग्रो माय ad revenue, I have to build the team, and when I build the team my revenue will grow. Okay. Right. So ऐसा नहीं है कि ये इसको कैसे बढ़ाना है या मैं टीम को सरवाइव करवा पाऊँ. टीम वो एक रिस्क है. मतलब अभी अगर लेट्स से मैं 10 लोगों की सैलरी अफोर्ड करती हूँ, तो मुझे 11वें बंदे का रिस्क लेना पड़ेगा कि वो आए, क्योंकि उसके आने से ही ये और ग्रो करेगा. Got it. I think this is how it happens in every business. Yeah. Especially जो bootstrapped होते हैं, उनका यही ट्रूथ है कि वो रिस्क लेकर ही और हायरिंग्स करते हैं और फिर उसको ROI निकालते हैं, राइट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, Exactly. एंड दैट्स हाउ दे धीरे धीरे ग्रो. गॉट इट. तो जब आपने अपना वो, आई थिंक द डाइटिशियन और द न्यूट्रिशनिस्ट वाज द फर्स्ट हायर, यू सेड यू वर अ टीम ऑफ 2. Yes. Then after that, how did you scale the team? I want to understand, because hiring and finding the right set of people who align with your mindset and vision, that too in this niche industry, वो बहुत difficult. I mean, दुनिया की leading companies are struggling with hiring. यार हम लोग क्या हैं? Exactly. How did you hire the right people? So hiring is one of the most challenging tasks I'm in sure. any damn industry. Yeah. Because getting right people, I'm not saying people are not right, everybody is right, but then who resonates the most with you is the thing. तो मतलब मेरे केस में मैंने बहुत बेबी स्टेप्स लेकर चली. दैट इज व्हाट आई कैन से. मैंने ऐसे नहीं करा कि चलो आज मैं 10 डाइटिशियंस हायर कर लेती हूँ. मैं बहुत बेबी स्टेप्स लेकर चली और मैंने अपने प्रोसेसेस को डे 1 से बहुत क्लियर रखा. राइट. शायद इसमें बहुत बड़ा रोल था कि मैंने 8-9 साल जॉब की थी, कॉर्पोरेट जॉब की थी, तो वो मेरा कॉर्पोरेट माइंडसेट था. मुझे पता था कि प्रोसेसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. मैंने बड़ी बड़ी MNCs के साथ काम किया था, तो मुझे पता था कि कितना ज़रूरी है कि हम डे 1 से चीज़ों को MOMs क्या होते हैं, मीटिंग्स के बाद, मतलब वो सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशंस और वो सब चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना क्यों ज़रूरी है. करेक्ट. अदरवाइज शायद मैं एज अ नाइव पर्सन स्टार्ट करती बिजनेस तो मैं बहुत गलतियां करती. मैंने अभी भी की गलतियां, बट इन सब चीज़ों को, स्ट्रक्चर्स को, प्रोसेसेस को, मीटिंग्स को मैंने बहुत सीरियसली लिया अपने डे 1 से, और मैंने बहुत बेबी स्टेप्स लिए थे. सो एक डाइटिशियन को मैंने हायर किया और मैंने मतलब पूरा सेट ऑफ चीज़ें दी कि ये 10 चीज़ें हैं जो ऑन पॉइंट होनी चाहिए. इसमें हम कभी भी लाइक वी कांट गो हेयर एंड देयर, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. और उसके बाद जब मुझे लगा कि सब अच्छा चल रहा है,
अब ये एक डाइटिशियन 10 क्लाइंट्स 15-20 क्लाइंट्स को हैंडल कर पा रही है, थिंग्स आर गुड, then I will take another step of hiring another dietitian. I will take 10-20 more clients. That's it. I will first ensure कि सब सही है, then I will take the next step. करेक्ट. So वो baby steps लेना worked for me. It may or may not work for everyone. But मेरे केस में ये चीज़ थी कि मैंने बहुत धीरे धीरे ग्रो करा. फिर जब मुझे लगा 5 लोग हायर हो गए हैं, सब अच्छा चल रहा है, नाउ आई कैन टेक द रिस्क कि मैं 2-3 एक और साथ लो. और हायर कर लूँ, बिकॉज अब मुझे समझ में आ गया है. Correct. Got it. And when you're hiring people, Gunjan, are there certain qualities, specifically certain characteristics or something that you particularly look at when you're hiring? It may sound very informal, but for me the first criteria is the vibe. Vibe? I was going to say that. It's the vibe, absolutely. मुझे vibe आनी चाहिए, उसके बाद मैं बात ही बाद में करती हूँ. मुझे vibe ही नहीं आई, मैं बैठते इंटरव्यू में मुझे vibe नहीं आई, तो मैं वहीं पे 5 मिनट में इंटरव्यू रैप अप कर देती हूँ. आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है. तो मैं बोलती हूँ एक्सपीरियंस भी मैं सिखा दूंगी, सब, बाकी हाँ. सब चीजें हो जाती हैं ठीक, मगर Right. अगर आपका बिहेवियर, अगर आप वो ठीक से वाइब नहीं कर रहे हो मेरे साथ, हाँ. यू नो वो चीज ठीक नहीं है, तो फिर क्योंकि that it cannot be cannot- fixed. Exactly. That can't be is fixed. something you Everything cannot else can be taken care of. Right, absolutely. True. Makes a lot of sense. I think with that, let's talk a little bit about I Am Wow थोड़ा डिटेल में. Okay. I want to understand, Gunjan, that at I Am Wow specifically, अगर आप break down करके बता सको, how does it function? What kind of services do you exactly provide? What kind of clients are you catering to? And how is it functioning as a company altogether? Because obviously we know what niche it is into and what problem you're solving. But exactly क्या क्या चल रहा है उधर, if we can know a little bit in detail. श्योर. सो आई एम वाओ में भी मैंने बहुत रिस्क लिए हैं और बहुत चीज़ें, बहुत गेम्स खेली हैं इसमें भी. थैंकफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है. सो आई एम हैप्पी टू शेयर वट आर द राइट थिंग्स आई हैव डन एंड वट आर नॉट द वेरी राइट थिंग्स आई हैव डन. Yeah. सो जैसे मैंने बताया कि इनिशियली वही हायरिंग कर करके 10-15 लोगों हाँ. की एक इनिशियल टीम बन गई थी. Correct. तो वो न्यूट्रिशन था, डाइट क्लाइंट्स आ रहे थे, क्लाइंट्स मेरे कंटेंट के थ्रू आ रहे हैं. सो फॉर अच्छा. मी माय एंटायर मार्केटिंग इज थ्रू Your my content. There is हाँ. no cold calling, no sales that we do, कोई Nothing. nothing Got till it. date. There is pure marketing through your social channels organically. it's always people reaching out to us हाँ. after watching my videos कि आपका हमें अच्छा लग रहा है, we Correct. trust you, हाँ. we can, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों का ट्रस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर बहुत. मैं रीच आउट कर रही हूँ, वो ट्रस्ट ही नहीं है, तो मैं उनको क्या आगे दे सकती एंड हूँ. मोर देन दैट, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आपने इतनी मेहनत से इतने सालों में बिल्ड किया है, उधर से ही आपका एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना बच जाता है. कितना, हाँ. सो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कॉस्ट तो है ही आपका है ही नहीं. इट्स माय हाँ, कंटेंट, इट्स योर कंटेंट. सो हाँ Correct. वही है. तो वहीं से लोग आते हैं एंड आई नो कि ये तभी वो कम्युनिटी भी बन पाई, बिकॉज दीज आर द पीपल हु ऑलरेडी नो मी, राइट. दे ट्रस्ट मी ऑलरेडी. Yeah. सो वो आते ही ऐसे हैं कि गुंजन की हमने वीडियो देखी थी. सो Right. दीज आर माय क्लाइंट्स. तो मैं तो उनको क्लाइंट्स बोलती भी नहीं, मैं तो उनको मेंबर्स बोलती हूँ, या मैं बोलती हूँ तो मतलब आई इट रियली फील्स लाइक अ फैमिली. फैमिली. आई एक्चुअली सी माई सेल्फ इन ऑल ऑफ दीज पीपल. या. सो तो ऐसे मतलब वही मेंबर्स आते हैं, ज्वाइन करते हैं, एंड देन वी हैव अ पैनल ऑफ डाइटिशियंस जो उनको 1-to-1 सपोर्ट करते हैं. ओके. तो करते करते धैर्या 2021 में मुझे लगा कि अभी हम ये व्हाट्सएप पे सब चलता था. अच्छा. यू नो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, हम उनको प्लान दे रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं. बिकॉज मैं अगेन कॉर्पोरेट कीड़ा जो है दिमाग के अंदर, तो हमेशा से था कि नई चीज़ों को ना बहुत मतलब एक तरीके से करना है, एक प्रोसेस के साथ करना है. तो मैंने रिस्क ले लिया, या फिर एक पंगा डाल लिया कि ऐप बनाते हैं, अपनी एक ऐप होगी. और हम कोई बहुत बड़े कंपनी नहीं है, वी आर स्टार्टअप, लाइक हाँ. खुद से घर से कर खुद रहे हैं, से अपनी कर रहे हैं. मेहनत से कर रहे हैं. राइट. और तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐप बनाएंगे. हाँ. और ऐसे बड़े बड़े सपने देख लिए कि यू नो ऐसी ऐप होगी, सब कुछ उसके अंदर होगा. तो एनीवे ऐप बनाना भी स्टार्ट कर दिया. 1 साल लग गया ऐप बनाने में. माय गॉड. और बट पर्पस सिर्फ ये था कि लोगों को अच्छी एक स्टैंड आउट, एक थोड़ी डिफरेंट सर्विस एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस दे पाए. एग्जैक्टली. वो एक जगह पर आए, उनको सब कुछ मिल जाए. करेक्ट. अदरवाइज तो क्या है, डाइट प्लान जा रहा है, वो फॉलो कर रहे हैं. बट मेरा ड्रीम प्लान ये था कि एक ऐप होगी जिसके हाँ. अंदर उनको ना ही सिर्फ डाइट प्लान मिलेगा, वो डाइट प्लान पे क्लिक करेंगे ना जब किसी डिश के ऊपर, तो वहीं पे वीडियो खुल जाएगी, रेसिपी बना लेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग. जिनको रेसिपीज नहीं पता, वहीं पर उनको एक्सरसाइज की भी गाइडेंस मिल जाएगी. क्लिक करेंगे तो मेरी वर्कआउट वीडियो चल जाएगी और मुझे देख के वो एक्सरसाइज कर पाएंगे. गॉट इट. सो वो RIP, हाँ, वही हो गया. था कि हर जगह डालनी है. अल्टीमेटली यू वांटेड टू मेक देयर लाइफ इजी एंड मेक इट अ वन स्टॉप सॉल्यूशन वन फॉर स्टॉप देम. सोल्यूशन. हाँ. तो वहीं पर मुझे आई वेरी मच यू नो लाइक
अंडरस्टैंड और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वही माइंडसेट, मेंटल हेल्थ, तो एफर्मेशंस भी वहीं पर होंगी, वहीं पे प्ले करें, मेडिटेट भी कर लें। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं हर हफ्ते उनको एक नया टास्क दूंगी कि आज विजन बोर्ड बनाओ, अच्छा आज तुम ये वाली मूवी देखो जिससे तुम मोटिवेटेड रहोगे। तो ये सारी चीज़ें हमने उठा करके एक ऐप में डाली, और अब जो भी आते हैं तो वो ऐप यूज़ करते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि क्यों आई एम वाओ जो है वो काफियों से अलग है, अलग है। और ऑर्गेनिकली भी वो अच्छा चल रहा है, सरवाइव कर पा रहा है। राइट 100 से ज़्यादा कंट्रीज से लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं, अमेजिंग और इतने डाउनलोड्स भी मैंने आपको बताए, मोर 1 देन 1 lakh लाख plus डाउनलोड्स हैं। downloads yeah हाँ, सो मे बी दीज आर सम स्मॉल it's a unique it's your USP I feel because I also don't know of uh, apps as such wherein इतने सारे elements integrate हो रहे हैं जैसे आपने बोला whether it's activities something that you can do whether it's diet plans एग्जैक्टली so like I said holistic solution है होलिस्टिक पूरा सोल्यूशन। एंड अब जब लोग ज्वाइन करते हैं या डाउनलोड करते हैं ना, दे हैव देयर ओन रीजंस टू डाउनलोड इट। Correct. कुछ लोग सिर्फ रेसिपीज के लिए ही करते हैं कि हाँ। हमें इतनी सारी हेल्दी रेसिपीज मिल Recipes जाती मिल हैं रही वहां हैं, पर, हाँ। और इतनी इंटरेस्टिंग हाँ कि हमें मतलब हमारे लिए कितना ईजी हो गया ना कि हम सिर्फ जाएंगे और कुछ भी उसमें से रैंडमली देख कर बना लेंगे। वो अच्छा भी होगा, टेस्टी भी होगा, और हेल्दी भी होगा। व्हाट एल्स डू वी वांट? right got it तो हमें कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हेल्दी रेसिपीज हमें पता है Right. यहाँ पर मिली जाएगी। Got it. वर्कआउट करना है तो हमने इतने सारे वर्कआउट के उनको ऑप्शंस दे दिए, बिगिनर, एडवांस, भांगड़ा वर्कआउट, जुम्बा, योगा, कि बस आप आओ, कोई वीडियो प्ले करो और एक्सरसाइज करो, आपकी फिटनेस सॉर्टेड है। amazing that's very I think well planned and thought through सो आई थिंक वो सारे वो जो इंग्रेडिएंट्स थे ना, वो यही था कि एक मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, एक मेरी अपनी प्रॉब्लम, मुझे लगता था कि इसको ईजी और एंटरटेनिंग बनाना बहुत कैसे ज़रूरी है। हाँ तो वो सारी चीज़ों ने मिलकर वो एक ऐसी ऐप बन गई कि नाउ पीपल लव इट, एंड विच इज़ वाई मतलब मंथली सब लोग उसको ज्वाइन Join करते हैं, कर रहे सब हैं। कुछ होता है। सो आई थिंक या दैट्स हाउ आई You एम built it. इवॉल्व्ड। Great. So one question from this perspective, let's say somebody is not taking a one-on-one session with you and not coaching with you per se, they can still join the IMY community by downloading the app. Yes, they can still. It's free to download. Right. Anybody can download it, and there are a lot of things they can still use for free. But Got then it. there are some exclusive Obviously. features just for the members. Right. Huh. And is it on a subscription model? It's How no, is it? So yeah, the beautiful part is once you become a member, you will always be a member. No matter Oh. आपका एक महीने में plan खत्म भी हो गया, हाँ. but you will always be a member. That's very lovely. Because it's just because we want serious people. We Correct. don't want कि हाँ बस लोग आ जाएं पर उसको यूज नहीं कर रहे हैं। कुछ फायदा वो नहीं एक है। कम्युनिटी बनाई है, लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी है। Correct. So now once every month I connect with this community online, जहाँ पे दुनिया के हर कॉर्नर से सारे लोग ज्वाइन करते हैं। अच्छा। And it's such a beautiful place because everybody is there with the very same purpose. They have the same mindset. They are health enthusiasts, and they are there to talk to each other, get inspired from each other, help each other. So sometimes we just do a random chit chat around health कि हाँ ये cravings होती हैं तो कैसे डील करना है, ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या करें, एक दूसरे की अब सब वो हेल्प करते हैं। वो कम्युनिटी सी बन गई है। कभी हम लोग सब साथ में वर्कआउट करते हैं, साथ में मेडिटेट करते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। Right. And I'm glad that you touched base on this. When we talk about the word community, especially in the content creation ecosystem, I think the definition of community is not correctly put out. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने बहुत बार बोला कि हमारी कम्युनिटी बन गई, आई ट्रीट देम एज माई फैमिली, आई डोंट लुक एट देम एज माई क्लाइंट्स, राइट? Everything that is coming in is all inbound. It's through your organic content on your knowledge that's coming in. This is what people struggle with building. Followers and community में एक बहुत बड़ा difference होता है. How do you move and transition and come to a stage जहाँ पे you're not just a creator who has X million followers, but you also have a close-knit community who are not just your true die-hard fans भी word नहीं, who believe in the philosophy with which you're living, who resonate with what you do and want to be a part of that journey at some level. Because वो crack करना बहुत difficult है. That too in a niche like this. What does it take to build a community? I think listening to your followers is one of the very important things which a lot of people miss. Acquire कर लेते हैं हम, followers बन गए, हम देखते हैं, enjoy करते हैं, but listening to them, ensuring कि वो जो चाह रहे हैं क्या हम उनको वो चीज़ दे भी रहे हैं. So that can happen through comments. Look at your comment section and read what they want to say. Right. Go through your DMs. क्या मैसेजेस वो आपको कर रहे हैं. आप लाइव जाकर इस तरह के इंटरेक्शंस जब आप करते हो तो आपको समझ में आता है.
सो ये सब चीज़ें सिर्फ एक फीचर नहीं है, बट इफ़ यू यूज़ दीज फीचर्स वाइजली यू विल अंडरस्टैंड दैट यू विल बी मोर क्लोज टू योर कम्युनिटी एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट योर ऑडियंस रियली वांट्स व्हेन यू डू things like Q&A, when you do things like live interaction and all these things, it really helps you to understand your people better. Right. And going through the comments is, I think, the best and most important, the least That anybody can that do. anybody True. can do. That's true. मुझे याद है मेरे कंटेंट क्रिएशन जर्नी में ऐसा हुआ था कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और अलग अलग तरह के कंटेंट से ठीक है. मैंने करना शुरू किया, बट उसके बाद मैंने देखा कि लोगों को वो शायद चाहिए ही नहीं. वो मेरे पास एक रीजन से आए हैं, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए आए हैं, उनको वही चाहिए. तो जब उनको वही चाहिए तो मैं और दूसरी चीजें करके उनका टाइम वेस्ट क्यों करूं? Right. मुझे लगा नहीं, लेट्स स्टिक टू द नीश, लेट्स स्टिक टू व्हाट दे वांट. Got it. Makes a lot of sense. नहीं, because whatever is working for them and what they want, आप वही provide करोगे तो that is what Exactly. it makes sense to While do. helping them grow. Grow, ऐसा obviously. नहीं कि हम एक ही चीज बार बार कर रहे हैं. खुद ग्रो करो, साथ में उनको भी ग्रो करो, बट थिंग्स दैट दे रियली आर इंटरेस्टेड इन, यू नो. Right. Makes a lot of sense. So with that, Gunjan, I would like to also understand कि अब जब obviously I Am Wow is at a stage where it is obviously self-sustaining. There are multiple members working on it. You are working with people all across the country, right? And content तो चल ही रहा है, right? What is there anything specific, anything special, anything new that you're working on, if there is any? Could be a project, could be something you're very excited about or may want to venture into in the future. Along these lines itself, जिसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हो और it's in the building which you'd like to share. राइट. सो यस, देयर इज डेफिनेटली वन थिंग जो भी पाइपलाइन में है और मैं बहुत अग्रेसिवली उस पर पैशनेटली उस पर काम कर रही हूँ, Right. विच इज बेसिकली द प्रोडक्ट लाइन. Oh. तो नाउ वी हैव लाइक कंटेंट इज देयर, सर्विसेज हाँ. इज देयर. अब अगेन एक और जो मुझे प्रॉब्लम एरिया लग रहा है वो है कि सही तरह के प्रोडक्ट्स, FMCG प्रोडक्ट्स, हाँ. जो शॉर्ट हमें पता है कि इस ब्रांड के आई एम वाओ के ले लो, ये हेल्दी ही है. Okay. इट begins right from chai patti हाँ. to your peanut butter to your apple cider vinegar and things like Oh. these, जो आप आंखें बंद करके ले लो, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई XYZ ingredient नहीं है. And the thing is, people know I Am Wow is a brand that stands for health and wellness. Right. So इनके प्रोडक्ट्स ये जो है वो सारे ट्रस्टवर्दी होंगे, और वो अगेन मतलब मैं अपने फेस वैल्यू पे बेच रही हूँ, मुझे पता Correct, है, आपको, मैं हाँ. खुद उसे कंज्यूम करने वाली हूँ. Right. Exactly. सो दैट्स इन द आपके थ्रू ही obviously वो मेरे propagate थ्रू ही होगा. हाँ. जाएंगे. मैं चाहती हूँ मेरी ही कम्युनिटी उनको यूज करे, हाँ. बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि तुम अपने परिवार को कभी गलत चीजें नहीं देते हो, Exactly. तो मैं अपनी कम्युनिटी को कभी नहीं गलत चीज दोगे. नहीं दूंगी. मैं खुद उसे यूज करने वाली हूँ, और इनफैक्ट वाइल टेस्टिंग आई एम डूइंग इट ऑलरेडी. This is very So, exciting, but यार, yes, building a yes. product would have been a very different experience also, It right? is, Coming from it a is. service background. मतलब Yeah. providing services is obviously a different thing. But creating a product from scratch and, you know, वो अपना खुद का एक बनाना under the brand name, I'm sure it would have been a very interesting journey. It's very interesting, very exciting, और बहुत मजा आ रहा है ये करने में भी, बिकॉज अब जैसे एप्पल साइडर विनेगर बन रहा है तो उसके लिए एप्पल्स हिमाचल से सोर्स होंगे. My God. और क्योंकि मैं अब इतना इसके बारे में पढ़ चुकी हूँ ना, तो हाँ. धैर्य, आई नो द स्मॉल लिटिल थिंग्स विच गोज इनटू इट. मुझे पता है कि एप्पल साइडर विनेगर को मैक्सिमम यू विल सी कि वो प्लास्टिक बॉटल में बिकता है, बट Correct. मुझे पता है कि वो शीशे की बॉटल में बिकना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के साथ वो रिएक्ट कर जाता है और वो Correct. हेल्थ के लिए अच्छा नहीं Over a होता. long period of मेरा time. एप्पल हाँ. साइडर विनेगर शीशे की बॉटल में आएगा, हाँ. ऑल्दो इट्स गोइंग टू कॉस्ट मी मोर, Yeah. इट्स गोइंग टू बी उसके लॉजिस्टिक्स में इश्यूज हो सकते हैं, हाँ. बट मुझे पता है कि ये चीज इसी में ठीक है, तो मैं उसी में ही दूंगी आपको. Right. मतलब आपने हर एक nitty gritty का और detail का ध्यान रखा है. It's not just a product. You are looking into the packaging, what it is going into also for your consumer, Right. which is very interesting. ये आपने कब, when did you start building this? Like since when have you been working on the product line now? सो आई एम वाओ की एक हर्बल टी है जो पिछले 2-2.5 सालों से चल रही है. Okay. इट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लाइक Consume इट, it, हाँ, हाँ. जो कंज्यूम करते हैं उसको रेगुलरली. अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस साल आने वाले हैं. सो Great. लाइक वेरी सून यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स And where will, like, let's say if anybody wants to purchase them, are you going to put them on e-commerce websites या कैसे? हाँ, it will be It will on be? I Am Wow website, हाँ. and it will also be on Amazon. हाँ, right. So, I mean, people can avail it Exactly, then. anybody can avail. Very interesting. Amazing. I think with that थोड़े बहुत अब, you know, let's move a little towards money also, because obviously money is important to survive. Absolutely, And we are all obviously, one of our motivating factors is money, and that's why, because you have to grow the team, you have to grow your vision also, and money is an enabler in that journey. Right. I want to understand that for somebody
who is aspiring to build something like you, maybe Okay. start as an individual health coach Okay. per se, Okay. to building a company like yours, Okay. and then maybe starting their own product lines also, or just making a service based business in the health coaching space. Okay. I want to understand what the scope could look like. You don't Okay. have to give me pinpointed numbers, All but right. जब कोई just start कर रहा है, enter कर रहा है इस market में, और let's say सिर्फ online sessions 1-1 घंटे के trainings वो दे सकते हैं, या one-on-one session से start करते हैं, to this part, what can the trajectory look like and how fruitful it is as a career path? ओके, मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के ज़माने में आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके और सेल्फ पेस्ड इस तरह से चलने की ज़रूरत नहीं है Okay. व्हेन यू हैव अ टूल लाइक सोशल मीडिया। तो साथ में अगर हम सोशल मीडिया को लेके चलते हैं डे वन से, इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, बीट एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, इफ़ यू एट ऑल थिंक कि मुझे फ्यूचर में अपना बिजनेस बनाना है, तो सूनर और लेटर आपको सोशल मीडिया को यूज करना ही पड़ेगा। तो बेटर है आप डे जीरो से जैसे ही करो, करो, हाँ, धीरे धीरे अपनी ऑडियंस बिल्ड करो, अपने नीश सेगमेंट में बिल्ड करो, एंड दैट हैज रियली हेल्प मी। मेरे केस में एक मैं सीक्रेट बताती हूँ जो सबसे ज्यादा मेरे काम आया, वो यही है कि मेरा जो सोशल मीडिया है, मैं उसमें हेल्थ एंड फिटनेस की ही बात कर रही हूँ। मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो भी हेल्थ एंड फिटनेस है, मेरे जो प्रोडक्ट्स Products आ हैं। रहे हैं वो भी हेल्थ एंड फिटनेस Everything is है। integrated. फ्यूचर में जितनी भी चीजें आएंगी वो इसी से रिलेटेड आएंगी। तो जो मेरी ऑडियंस आज बिल्ड हुई है वही ऑडियंस है जो इन सब चीजों की भी कंज्यूमर है। Yeah. अगर आज मैं बात कर रही हूँ हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, प्रोडक्ट मेरा हो जाता है स्पोर्ट्स में, तीसरी चीज मेरी हो जाती है किसी और XYZ चीज में, तो मैं अलग 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 प्लेग्राउंड में Playground, हूँ। हाँ, तो मैं and वो अपने trust नहीं efforts- build होगा। ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, लोगों को भी समझ नहीं आएगा कि गुंजन है कौन? कहना क्या चाहती है, राइट? सो टॉक द सेम थिंग, वॉक द सेम थिंग, एंड देन थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो आज आप डे वन से अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो धीरे धीरे अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करो, ऑर्गेनिकली भी करो, और इफ योर पॉकेट अलाउज, इफ इट इज फिजिबल फॉर यू, तो आप मार्केटिंग भी, जो भी अपने एफर्ट्स कर रहे हो सेम डायरेक्शन में डालो। Right. उसके बाद आप कोर्स करना चाहिए ज़रूर इस फील्ड में। तो डेफिनेटली क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड ये बहुत सेंसिटिव फील्ड Sensitive है। field है। आप किसी की हेल्थ के बारे में उनको गाइड करने जा रहे हो तो वो ट्रस्ट ही नहीं आएगा और आपको ही नहीं मजा आएगा जब तक आप खुद क्वालिफाइड नहीं होगे। Yeah. यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? Exactly. सो गेट द राइट क्वालिफिकेशंस, स्टार्ट बिल्डिंग योर ऑडियंस, एंड देन हाँ, मतलब दिस इज हाउ। बाकी तो मैंने अपनी जर्नी बताई है कि Right. कैसे आप आगे Correct. बढ़ सकते हो। नहीं, I'm sure that this will actually help people also understand. Like you said, ये point बहुत important था। आपने ऑडियंस जिस नीश में बिल्ड की, आपने उस पे कम्युनिटी प्रोग्राम्स और कम्युनिटी बिल्डिंग की, और सेशंस भी उसके अराउंड रखे, एंड देन उसी के अराउंड प्रोडक्ट लाइन लाई, एंड बिकॉज वो दैट कॉमन स्ट्रिंग एंड दैट थ्रेड इज टाइंग ऑल थ्री टुगेदर, देन it builds that personal brand and value. Exactly. Right. And that is something that I think people will probably be able to learn and emulate if they want to do something similar. With that, Gunjan, I think I could, मैं हर गेस्ट से यही बोलती हूँ कि यार मैं questions और conversation तो will never stop, because I could ask endless questions. Yeah. It's so interesting to know things about people, right, and how they're building what they're building. But before we obviously segue into the rapid fire segment, I always ask this one question to all of my guests, right? Which is the most common question, but it is the most important question because it gives me insights into the way my guest thinks. Okay. And it tells me a lot about where they are today, if Okay. not where they were, in the past. Which is, जब हम बात करते हैं about failures, success, learning, and हर इंसान की एक जर्नी होती है, राइट? बट आई ऑल्सो फील दैट एज यू प्रोग्रेस एंड यू अचीव सर्टन माइलस्टोन्स, मे बी materialistically, non-materialistically for some people, we just start perceiving success very differently at different levels. Today, as you sit down and you've built what you've built for yourself, you are at a certain base as a creator. How has the definition of success changed for you? What does it mean today when I ask you this question? What does success mean To you today? I think I feel that, so success is, it's a journey, first of all, because you, as a human, there is always longingness to achieve more and more. Correct. That's the fact, right? So वो सक्सेसफुल, तो आज मैं जितनी भी हूँ, मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन हर दिन बदलती रहेगी। बट टुडे एज वी सिट, एज वी टॉक, मुझे लगता है कि अगर आज मेरे फैमिली मेम्बर्स को मेरी ज़रूरत है और मैं उनके लिए इमीडिएटली प्रेजेंट हो सकती हूँ, बिना ये सोचे कि मेरे पे 10 डिपेंडेंसीज हैं और मेरे बिना ये चल नहीं सकता, या आई कैन बी देयर इफ दे नीड मी, आई थिंक Your presence. यस, आई फील आई एम सक्सेसफुल. That's amazing. This is one of the most unique answers that I've got. Sabne, like I was
I talk to my guests about this and I always tell them there are about 30-35 people I've interacted with. I ask this question to everybody single handedly and I get a different answer every time. This is the most unique perspective that I've got, Because actually. see, we say time is money. And Right. if we have time, Huh. we are the wealthiest. You are the wealthiest Yeah. person. True. And you have actually taken it one step forward and put it into a perspective कि अगर मैं अपनी family members के लिए present हूँ when they need me, then you are truly successful, right? और चाहिए क्या? So I really like that answer. And with that, we are going to move into a very fun segment, Okay. which is the rapid fire segment. All right. I would want your answers to be either one word or a single line, but it has Okay. to be the first spontaneous thought that comes to your mind. Don't think Okay. through it a lot. Okay, bring it on. है ना? ठीक है. चलो. So the first question for you, Gunjan, in the rapid fire round is that if you had to choose, okay, between money, fame, reputation, and success as of now, right? Okay. I'm telling you to put it in an order of preference as of now. How would you put it? So it's money, Fame, repu- success, reputation. So success को हम side रख देते हैं because success will overtake everything. So ठीक है. second or like first, if success is not in the picture, then it will be reputation. Okay. Yeah. And reputation के बाद फिर? Order Reputation में? के बाद fame and then money. Okay. Reputation, fame, money, and then maybe Because it's success. not because it's not because money is not important for me. It is. But हाँ. ये मेरे ना inner belief है कि मैं जब बाकी सारी चीजों को करूंगी ना तो money will flow automatically. This has Got it. always happened. Happened. I've हाँ. never focused on money and I've never touch wood by God's grace मुझे Right. कभी problem नहीं आई. Like I always feel satisfied because I have this utter belief in this fact कि आप बाकी सब चीजें करोगे ना तो money will come out. खुद as a byproduct. It's a Right. byproduct. Great. Question number 2. If you had to choose between health coaching and content creation, Oh shit. which one This would you is very choose? difficult. I mean, my content creation is about health coaching. So what do I do? I know, but Okay. Ah, hmm, I think content creation. why? I don't think I'm sure content creation Why? because that's very close to my heart. That has what made me reach out to people. And if I'm being a health coach, if I'm not able to reach out to my community, people are sitting in different corners of the world, then what's the point of being a health coach if I'm not able to impart my knowledge? Right. सो हेल्थ कोचिंग का टैग ले लो, मैं देसी तरीके से सिखा दूंगी बट पहुंचूंगी तो सही. Very smart. ये बहुत smart answer था. Okay. The third question for you, Gunjan, is that what is the most expensive purchase that you have made in your life till date? Okay, like Financially. Materialistically. Okay. Or anything that you've spent the most money on so far. Okay. I think Apart from your house and car. Okay. If you were going to say that. So I love to spend on travel. ठीक है. I will not call myself a travel freak because वो बहुत अब क्लीशे हो गया, हर कोई बोलना शुरू कर दिया. But हाँ. I love to spend on travel. Okay. तो मुझे मेरा जो next biggest spend होने वाला होता है या last हुआ होता है वो मेरे travel पे ही हुआ होता है. On your travel trips, मतलब जो experiences Yes. your. I don't look at the price tag Price when tag. it comes to travel. I will look at the price tag for everything else but not travel. Amazing. Yeah. Great. Okay. The next question, Gunjan, is that if you had the chance to have a roundtable conversation with any three people over dinner, Okay. right? So Okay. it's a roundtable dinner conversation with any three folks that you can get on the table, living or dead. Okay. Who would they be? Okay. First I'm sure like पहला तो दिलजीत दोसांझ है ही तो Oh. मैं सिर्फ बाकी दो के बारे में सोच रही हूँ because not only because I love him and I admire him also हाँ. because there is so So much to learn from him. There is just so अलग much ही to- बंदे हैं वो वो. अलग ही हैं. अलग So ही हैं. for all the reasons and plus I swear. admire him also so Yeah. I'll keep looking into his eyes and try to learn as much as I can and I think I don't need anyone else. Only दिलजीत. नहीं let me ऐसा तो figure नहीं it out. Living or dead. Um, okay. I think I'll also have Rihanna. Oh, all these are like singers. Singers. So I'm not into singing or music that much, but I पर आपको उनके just- नाम हाँ. So interest. So, रियाना और दिलजीत एक Rihanna, साथ. Diljit, and I think I don't want chaos. Like ठीक है, 1-to-1 थोड़ा सा small. You round wouldn't table, want like हाँ. ठीक हाँ, है. ज़्यादा interesting रहेगा. Got it. And आप बात क्या करोगे इनसे? इनसे इनकी लाइफ के बारे में पूछूंगी, हाँ. कैसे इनके सक्सेस के बारे में पूछूंगी बिकॉज आई Right. रियली एडमायर बोथ ऑफ देयर सक्सेस आल्सो द वे दे आर इन देयर लाइक पर्सनल एंड Personal. प्रोफेशनल लाइफ. देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम देम. True. Very, very interesting combination on the table. यस. इस टेबल पे I'm sure a lot of people would like to join you. तो आप थर्ड मेंबर किसी को तो बना देना जो आ सकता है इधर.
Okay. I think I'll have someone from my team to take down all the learnings. All the learnings, है ना? You know, that's very important. That is important. हाँ, तो third कोई team से आएगा. Done. Okay. Okay, with that, the last question for the rapid fire, Gunjan. What is that one piece of advice, or I would say learning, or something that you have experienced in your life which has helped you sustain and come to this level where you have come to? Like that one thing that has had the major role in making Gunjan what she is today and build what she has built. Here I can, like, I think I would like to bring the spiritual part of me. Yeah. I truly believe that, you know, whatever is happening with you, if it is not as per your plan, then just keep patience and trust the process. क्या बात बोली आपने? I mean, मैं बहुत, हाँ, मतलब ये हाँ. बहुत ऐसे लग सकता है कि इसके पीछे ना वो म्यूजिक लगा देना, हाँ, वो वाला समझ ऐसे, गई समझ मैं. गए ना With the ऐसे? halo, white halo. हाँ, है वो ना? भी लगा सकते हो. Editor. Take notes. बट हाँ, मतलब जब भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती मेरी हाँ. लाइफ में, बीट पर्सनल प्रोफेशनल, आई जस्ट गिव इट सम टाइम एंड आई जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, Process. ट्रस्ट माई डेस्टिनी कि नहीं, जो हो रहा है ना वो मेरे प्लान से कुछ अलग ही हो रहा है और कुछ बेटर ही होगा. Better ही होगा. शायद मुझे आज हम्म. इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, शायद 6 महीने के बाद समझ में आए, बट आई नो दैट आई विल बी थैंकफुल टू वट एवर इज हैपनिंग विद मी टुडे. No, but that is a very profound learning also, I feel, because like you said, everything is very, I don't know what's the right word to use, but everything that you're experiencing and going through is anyways temporary. I don't know, because it is temporary, right? It is for a short-lived period. Exactly. It may have a timeline of 10 years also, but you don't know 10 years later things might change. COVID came in, we didn't know what would change. Exactly. So जब मेरे हाथ में हाँ, इतना ही कंट्रोल दिया है भगवान ने, तो मैं उससे ज्यादा उस पे क्यों टेंशन क्योंकि या आज की स्ट्रेस. डेट में हम सब लोग बहुत एग्रेसिव वर्ल्ड है, हम सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अपना बहुत दिमाग यूज कर रहे हैं, True. ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, Right. तो ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे लगता है और मतलब कॉम्प्लिकेशंस ऐड करने की Added जरूरत नहीं complications है. नहीं जो है. हमारे कंट्रोल में है हाँ. उसको करे, 100% दे, और जो कंट्रोल में नहीं है शांति से बैठ जाए, अपने आप हो जाएगा सब. Good. Very great advice. I had a very, very fun time recording this episode with you, Gunjan. Likewise, It has been very interesting to get to know your journey from being a techie to becoming a fitness and health, not just enthusiast, but coaching people and then building a team and scaling it. Very inspiring. And I'm sure that all the viewers who will watch the video till the very end will definitely have some golden nuggets to take back. I hope so. And for all of them, obviously, while a lot of them may already know you, we will be linking Gunjan's and I Am Wow socials in the description. So definitely check them out. Before Thank we you. let you go, Gunjan, Yeah. any last thing that you would like to end the podcast on the note of? Anything you want to tell the viewers? Please feel free to. Yeah, so being a health cheerleader, I Mhm. think I'll always say no matter what you do give priority to your health, to your physical and mental well-being, because health is wealth, या health है तो सब कुछ है. So just don't ignore your health. लाइफ में, करियर में बहुत आगे बढ़ोगे अगर हेल्दी होगे, फिजिकली फिट होगे, तो ये जो जर्नी है आपकी बहुत अच्छे से बीत सकती है. So Correct. prioritize your health. in Great. short. Amazing. And I hope that you had a great time at the podcast as well. Absolutely. I loved it. Great, amazing. And for everybody, again, I'm sure that आप obviously सारे learnings जो भी जब when you watch a podcast, I've started saying this in every episode now, because what I've realized, Gunjan, is लोग सब outro तक भी जो देख रहे हैं आप सब सुन लेते हो एंड वो बहुत अच्छा लगता है उस फ्लो में, बट जो भी आपने चीजें बोली when you built it, if they don't implement it, it's of no sense. Exactly. So if you're seeing this even at this stage, जो भी आपने सुना है, whatever you've learned from Gunjan, उसको practically apply करना अपनी life में, then you will see a transformation. Benefit ही तब है. तब है. So that is the one last thing I'd like to say. And with that, we come to an end to this episode. Don't forget to like, share, and subscribe to the Dheria Decodes channel. I'll see you in the next one.